I think Mr. Amarjit Chopra requires no introduction. It is always a great pleasure to have with us. He has got 45-year experience and he is presently partner with GSA and Associate. He was president of Institute of Chartered Accountant of India for 10-11, and he is also honorary chartered accountant with the membership of Australia and New Zealand. Moreover, he is also chairman of the National Advisory Committee of Accounting Standards till 30th September 18. Moreover, he is a member of NFRA and also he was in the board of directors of. First, Sanjeev sir is taking the session. Sanjeev sir देख रहे हैं? Yeah. So I welcome you, Sanjeev sir. He's a chartered accountant, a law graduate, a member CPA Australia, and is having a rich experience of more than 38 years in domestic and international tax advisory, transfer pricing, and taxation of cross-border transactions. He regularly represents clients before various tax authorities, including Appellate Forum and Competent Authority of India on complex tax issues. Sir is presently associated as a senior advisor to BSR and Company LLP. Sir is a member of various committees and board, both national and international chapters, and has served as a member of various committees of ICI and was also responsible for ensuring the quality of the certificate course conducted by the Committee of International Tax of ICI. Apart from this, Sir is regular contributor to the tax journals and has been writing a column called Tax Talk in the Hindu Business Line for the last 5 years. Over to you, Sanjeev sir. Thank you very much. Respected Mr. Amarjit Chopra, the senior, the mentor for many of us, Mr. Bhasin, Munish ji, Nitika, Ramanjit, Kanika, and other colleagues. Coming straight to the point, I think everyone is looking at code of ethics in a very different way right now, because suddenly the code of ethics has become operational on 1st of July. I remember when this initially part 1 was approved by the council in December 18/February 19. The date of implementation was fixed as 1st April because of the reason that part B was not ready in any case. And also the fact that, this code should be known to all the members all over the country. So that also takes time. Keeping that in mind, the fact that it has to reach to the members, and secondly, the part B has to be still kind of revised, which is the major part also. It was decided by the council then to make it applicable from 1st April 20, which then got shifted to 1st July because of, I think, certain small delays, and I think council in its wisdom decided that the code should be now made applicable from 1st July. Now, I have about close to 35-40 minutes to cover some major areas, which I would, briefly touch upon some areas. First of all, this code is the 12th edition of the code. Our earlier code was last revised in 2009. So our code was last revised in 2009, basis then the ISBA code of 2005. So 2009 was the first year when the then council, and Sir I think was in the council at that time, they looked at the ISBA code and then converged it to the Indian requirements. The first time when the code was, the ISBA code was looked at. नहीं हो सकता, तो उसको बोल दो. And post that, the ISBA revised this code a number of times, and we in India revised our code in 2018, which now has become applicable. So the point number 1 is, it has been revised after many years, and there are a lot of changes. Having said that, the changes are not to be so much worried about, because if you look at what is ethics, I think ethics is all inbuilt. Ethics can't be codified, actually, can't be written. They are written because, just to make sure that our members understand it. It is implemented also. And then, God forbid, if there is some challenge, then one can look at the code and say, look, where is the default and why you have not complied with the code. So, and that's the reason this code has been codified. The next point I wish to clarify is that
have we adopted the international code? Because at some places I saw some members had the feeling as if we have picked up the international and made it applicable to India. If we had done that, it would have called the adoption. You know, you adopt a code, you're adapting something which has been done by someone else. We did not do that. We looked at the international code, we modified the code, we made changes wherever required, looking at the Indian conditions. We have Companies Act. Can we say that we will not have a firm rotation? Because ISBA doesn't talk about firm rotation, but we had to incorporate that. We cannot, you know, disregard the Indian Companies Act. We cannot disregard the Indian CA Act, the Indian CA regulations, and many other laws. So it is a convergence. It is not an adoption of the code. That's the point number 2 which I wanted to make. And third is, the code can be modified by the council at any point of time. So today also, if the council wants to make any change in the code, the council has all the powers. So if some people are giving an impression that, you know, we are following something which is internationally done, it doesn't suit us. Well, the crux of the matter is this code has been approved by the council as a guideline of the council, and the council is supreme. They have passed the code. They can make changes to the code whatever they want. So it is not something which is thrust upon us by anyone. There is someone who's made the code. The body is ISBA, part of IFAC, and ICI is a member of that body. We have a responsibility to look at whatever they do, but it does not mean that there's a compulsion on us to accept whatever they have done. We can modify it, we can accept it, we can change whatever we want to. So there is no compulsion on our council. Our council is supreme as far as India is concerned. Next point is, which I wish to point out, is the compliance to the code. Because this question was posed to me somewhere in one of the sessions, that how is it that one has to comply with the code? Where is the requirement to comply with the code? Please note, this code has been passed by the council as a guideline of the council. And if you look at clause 1 of part 2 of second schedule to the CA Act, I repeat, clause 1, part 2 to the second schedule, it says a member of the institute, whether in practice or not, shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he contravenes any of the provisions of this act, that is the CA Act, or the regulations made thereunder, or any guidelines issued by the council. So any guideline which is issued by the council has to be respected by the members. So a guideline saying that you can't do more than 65 audits has to be respected. A guideline says that you can't do more than number of company audits has to be respected, because this is done by the council. So in accordance with clause 1, part 2 of the second schedule, any guideline of the council a member has to follow, otherwise he'll be guilty of professional misconduct. So the force comes from the second schedule. Now, very briefly touching upon major changes in the code, you know, which are substantive changes. I think the first and the foremost substantial changes, or substantive changes, which kind of goes to the root of the code in certain way. And if I have to borrow with permission from what Mr. Chopra said a few days back, sir, you can correct me later on if I'm not correctly kind of giving this message. A new provision has been introduced in this code called NOCLAR, which is, you know, very simply put, and NOCLAR stands for non-compliance with other laws and regulations. Now, this is one area which puts a responsibility, onerous responsibility on the members, and I understand that. Now, when this code was passed, this issue was debated at length as to what is meant by this. So a couple of points which I want to bring out is that, one, in the initial year, it was decided by the council that it will be applicable to listed entities only, number one. Number two, it will be applicable only to the audit assignments. That is when I'm carrying out an audit of a listed entity. 2. And 3, it will be applicable to the members in service as also members in practice who are employed with those listed entities. 3. 4. Today also, a member is supposed to look at non-compliance with other laws and regulations as far as it impacts the financial position. That is already covered. We have a standard
which tells a member to follow that. I think it is SA 250. I'm not so good in the standards. Sir is confirming it. No, correct. Absolutely correct. SA 250. Now here, the responsibility on the member is caused to say that if there is any error or omission committed by a client or a suspected non-compliance, which has a major impact on say the going concern, or which has a major impact on the stakeholders, that it impacts the stakeholders. The stakeholders can be government, shareholders, public, etc., etc. Or it kind of gives you, it kind of imposes huge penalties on the company. So just to kind of give you an example, which is a very simple example to look at, supposing you have a client who's into real estate, who had some approvals to construct, say, 10 floors. And this happened actually in one of the companies in the Noida region. They had the approval to construct 30, 40 floors, and they constructed 60 floors instead of 40 floors. And this matter is actually reported in the press, so I'm talking about it. Not my client or nothing with them. Supreme Court, those guys issued notices. Supreme Court came down very heavily on them, and I think ultimately those 20 floors had to be demolished. Now, imagine a case that if during the course of your audit, you come across this information, that either there is a show cause or there are some problems. Now, the question is, should you keep a blind eye to it by saying that my appointment is under the Companies Act, I'm supposed to report only on the financial position, or my report is under CARO and accounting standards and whatever is required from the institute? And there's no compulsion on me to look at something which is the other law. Or take the case of Union Carbide, which was into chemicals, which created a havoc 25 years back or 30 years back. Now, if you come across during the course of your audit that there are show causes issued, the company is doing things which may cause damage to, the mankind, the people living around the factory. The question is, should you keep your eyes closed? And this new requirement in the code compels a member to look at it, consider it, and then take further steps. Now, this has been deferred again. And then coming back to what I said in the beginning, Mr. Chopra had said in one of the, virtual seminars, that this is, in a way, a soul of this code. By taking this away, you are taking the meat of the code away. At times we are asked a question whether the auditor is a watchdog or a bloodhound. And I think it was one of the articles of Mr. Chopra where he said, the time has gone that, you're no more a watchdog. Rightly so, you're not a bloodhound also, because you're not an investigator, you're an auditor. But somewhere, I think the impression which I got from the article was that you have to do much more than just being a watchdog. You can't be keeping your eyes close to it. And this is one provision which says that you got to do more. Now, this has not been deferred. The council has not even given any date. I'm sure the council will look at it. My request, which I have made to the Ethical Standards Board again in the last meeting, was that we should, I think, request the council to do it at the earliest, because these provisions are important. I do remember when NAFRA had come with the draft rules, they wanted to have a separate code of ethics to be drafted by them for the members. And to which the institute objected, and rightly so, that look, if the institute has a code of ethics, why should you have one more? And I think they very correctly accepted our request for not having a code, because they said, well, it is your responsibility, then you do it. And this is one provision which I think they were also very clear that they want it. Because somewhere they are, I think, looking at putting more responsibility on the members. And I think we should not shirk away from our responsibility. Yes, the institute has to do some more work here on this side as to what more guidance they can provide to the members to equip them as to what is the need and what should they do. But having said that, again, this code was passed in February 19. We had all the time till April 20 to do whatever we wanted to. Let's not go to the past. Whatever is done is done. I think let's move forward. And I think right now also we should take up these things in the right earnest and, make those things applicable. One big change in this code is, this code uses the word shall instead of the word should. Because our earlier code of ethics had used many places that a member should do this.
And I think, again, I would ask Sir to later on address us on this, that when I look at the disciplinary cases which the Institute has looked at, they are more under, Schedule 1 and 2 than the Part A of the code. I don't know the reason. The reason may be that maybe there were not too many cases. Someone said to me that one reason can be that the earlier code uses the word should, and somewhere the member could have taken a position that it is should and there's no compulsion on me to do it. I don't know how far this argument is correct, but in any case, in the future, the word shall is there, that the member shall do this. So a member has to mandatorily follow whatever is in the code. This code is very nicely structured, in explaining whatever is the responsibility which is a must. And this code actually, if all of you look at this code, it uses the word, the alphabet R in front of the paragraph number. And if you read that paragraph, each and every paragraph which is marked with the capital R bold is a must follow by the member. The word used will be shall in all those paragraphs. They will never use the word should. So that's another important change, which is more a structural change. This code also actually captures something where internationally, I think it has been discussed that there should be some restriction on the members to provide taxation services to the audit clients. If you look at the earlier code, I think it practically allows almost all the tax services to be done by an auditor, almost all. And the question is, should that undergo a change? And I think the reason certain things have to undergo a change, because with the passage of time, it is not really necessary that whatever was right 10 years back would remain the same 10 years later. The change is constant, as all of us know. Changes are taking place, the expectations are changing. And with the changing expectations, I think somewhere it was felt that there are certain services which if you provide, you may create a threat to your work done when you do a self-review. So for example, if you are computing the tax provision on the basis of which the accounting entries are being made, and if you audit the same accounts and the accounting entries have been passed by you, are you not doing a self-review of your work? Should you do that? Now, internationally, they believe you should not do it. In our country, we can decide what is to be done or not. Somewhere tax litigation, can you do the advocacy work? Can you do a valuation, which I think is in any case prohibited now also? Certain places the valuation is permitted, as long as it does not have any impact on the financial statements. So, Sanjeev, sir. It will be very, very pertinent to note that the judgment which has just come of NAFRA with regard to BSR on this particular point as to what we can do and what we cannot do. I am not with NAFRA on this particular issue. Let me be very clear about it. Because NAFRA has tried to interpret, which no one has so far tried to interpret. That's right. And I think even that has not been tested in the courts of law somewhere or the other. And they have even held the appointment of BSR invalid in IFM based upon certain business relationships. Now, business relationships can be the taxation practice, it can be internal control systems, verification, it can be transfer pricing audit, it can be anything for that particular matter. I think this is one point which we may think that we have lived with, but I don't think we'll be able to live with any longer. I'm very clear on this. Because even in UK today, FRC has asked the Big Four to segregate their practice into audit and non-audit services. They cannot continue to have both the practices in the same firm. And I'm very sure that they are going to say that if you are within the same group, you are using the same brand, you will not be able to render those services to that particular client. Let's be very clear about it. In India, the problem that we are facing is that the smaller firms, particularly in the Mufassil towns, are the auditors also, tax practitioners also, and whatever. I don't want even to use those words basically. Right, sir. So what we are trying at our own level is, both with MCA, institute level, that this concept of segregation of the services between the audit and non-audit services should be more for the public interest entities.
that if I'm the auditor of a public interest entity, then I should not be able to do that. But if I'm not the auditor of a public interest entity and just doing only some of the smaller clients, in that case, it should be permitted. But I can tell all members one thing very, very clearly. Anything which starts from the top, आज ये कहीं से भी शुरू होगा, कल लोअर लेवल पे आएगा ही आएगा. क्योंकि हम ये माने या ना माने, टैक्स की प्रैक्टिस मेरी इंडिपेंडेंस को हिंडर करती है. अगर मैं ऑडिटर हूं, चाहे मेरा पार्टनर टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं ऑडिट कर रहा हूं, क्योंकि जब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब हम, जिसने बेचारे ने ऑटोग्राफ देने होते ना अपने बैलेंस शीट के ऊपर, उसका नजरिया बिल्कुल और होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, ऑडिट करते वक्त. और जिसने टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, जो पार्टनर टैक्स का देख रहा है, उसका नजरिया बिल्कुल और होता है. वो कहता निपट लेंगे यार. हालांकि वो निपटने वाला भी कंसेप्ट काफी हद तक तो चला गया, फेसलेस वगैरह असेसमेंट आ गई, तो मुझे लगता नहीं कि कोई निपटा जाता अब या निपटा जाएगा इन द पीरियड्स टू कम. आई थिंक द रेगुलेटर्स हैव चेंज्ड, द सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड, द economic, political, social environment has undergone a complete change, a sea change. Absolutely. So मेरी मेंबर से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी इंडिपेंडेंस को खुद ही बरकरार रखना पड़ेगा, और अगर नहीं रखेंगे तो फिर टाइम रखवा देगा. सीधी सी बात है. मैंने हमेशा एक बात कही है कि जो चीज हम सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं वो लेस पेनफुल है, जहां पे हम रेगुलेट नहीं करते वो ज्यादा पेनफुल हो जाता. अभी when I come to some other issues basically after you, I'll tell them how it is becoming now painful to the members. मैं तो डिसिप्लिनरी कमेटी में पहले 4 साल लगाए, 3 साल लगाए, अब फिर 4 साल लगाने टोटल मुझे 7 साल हो जाएंगे डिसिप्लिनरी कमेटी में. आई एम व्यूइंग इट एज टू व्हाट हैपेंस एंड व्हाट द मेंबर्स आर डूइंग. वो चलेगा नहीं. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. जो चल रहा था वो चला होगा, चलेगा नहीं. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. मतलब कि हमने अभी एक मेंबर को गिल्टी किया कि उसने चेक तो लिया क्लाइंट से कि टैक्स में जमा करवाना, और चेक करवाता रहा अपने नाम में जमा. ब्लैंक चेक के जी टैक्स में जमा करवाऊंगा और अपने नाम में जमा करवा दिया 1 करोड़ कितने का टैक्स. तो ये चीजें चल गई जब चलनी थी, और हमने उसको शायद 5 साल के लिए डिबार किया अभी, और फाइन जो लगाया वो अलग लगाया बेसिकली. तो मेरे ख्याल में अब वो चीज चल नहीं सकती. तो मेरी मेंबर से सबसे एक ही गुजारिश है, ये जो आपने पॉइंट ऑडिट सर्विसेज और नॉन ऑडिट सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड की बात कर रहे हैं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. मुफस्सिल टाउन्स में भी अगले 5 साल में आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन को कंसोलिडेशन करके इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो दिस थिंग इज गोइंग टू फिल्टर डाउन देयर आल्सो. लेट्स बी क्लियर अबाउट इट. दैट्स ऑल. सॉरी to interrupt you. No. Perfectly fine, sir. It is good to have a dialogue instead of a. It's always very nice to hear you. Always. So I think I was saying the same thing, sir. I think my request to MCA less and more in the institute is that on this point, sir, we have a concept of management consultancy services in the code, in the regulations already. Now the institute had looked at it as to what my members can provide. I think what our members are looking at is from the institute is, now the Companies Act has certain restrictions that you can't provide a management service. There is a section 144. Now, after that, they have not explained what is meant by management service. They have not explained. Our institute has not explained. Now, I don't want to go into whether the Deloitte's order or a BSR order. I'm saying let them explain, at least for the future, it should be clear as to what am I supposed to do. One is past, sir, which someone may have done rightly, wrongly. I'm not going into that. Someone may believe I've done it wrongly. Some regulator may believe it is not right, etc. That will go on. But I think as a future, I believe very strongly, sir, that the institute has a responsibility that supposing MCA does not respond for the next 12 months, 24 months, 3 years, what is it my member should do? NFRA is taking one view. Tomorrow, courts will take some other view. I am left to the mercy of people who are taking a view. Should the institute not take a view? मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ. Sir. In all public interest entities, the non-audit services will go away, irrespective of any kind of service. Let me be very clear about it. Sir, I was coming to that only. ये रुक नहीं सकता, और ये आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगा. मैं ये भी बता रहा हूँ आपको.
No, sir, this I'll tell you. इंस्टीट्यूट चाहे या ना चाहे, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब जो ऑडिटर्स पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हैं, वो उन एंटिटीज को किसी भी तरीके की कोई भी सर्विस नहीं दे पाएंगे। इवन ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी की भी सर्विस नहीं दे पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अनदर नॉन ऑडिट सर्विस। स्टडी की बात कर रहा हूँ, ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑडिट आप कर पाओगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी फॉर देम। इंटरनल कंट्रोल्स की बात नहीं कर पाओगे, किसी तरीके की कोई मैनेजमेंट सर्विसेज में वर्चुअली सभी कुछ आ जाएगा, जहां तक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का सवाल है। तो मैं ये बता सकता हूँ, जो भी व्यक्ति पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहा होगा, उस एंटिटी को तो किसी भी तरीके की कोई सर्विस नहीं दे पाएगा। दैट यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट इट। छोटे वाले अभी बचे रहेंगे कुछ टाइम तक, वो ठीक है, परंतु वो भी सूनर और लेटर इन द नेक्स्ट 5 years दे माइट आल्सो बी कवर्ड। मेरा अपना मानना ये, क्योंकि हम एक बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जितने फ्रॉड्स हुए पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में या अदरवाइज, उसमें जो यूज हुई है वो छोटी कंपनीज ही यूज हुई, उसमें बड़ी कंपनीज नहीं यूज हुई। जो पैसा साइफन ऑफ हुआ है ना, वो छोटी कंपनीज के थ्रू साइफन ऑफ हुआ। लेयर्स क्रिएट करके सब्सिडरीज की, जॉइंट वेंचर्स की, एसोसिएट्स की, सब सब्सिडरीज की, सब सब्सिडरी की, वो लेयर्स क्रिएट करके ही फ्रॉड्स हुए हैं। इसलिए हम ये सोचेंगे कि छोटी कंपनीज पे तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू रिमेन, क्योंकि हमारा आर्गुमेंट भी फॉर द ऑडिट ऑफ स्मॉलर एंटिटीज इज ओनली द सेम। यूके में और बाकी कंट्रीज में जितनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जिनमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे उनका ऑडिट कंपलसरी नहीं है, इफ यू आस्क मी। क्योंकि उनका ऑडिट इसलिए कंपलसरी नहीं है, वो कहते हैं इसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। हमने यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का ऑडिट मैंडेटरी कर रखा है, और हम हमेशा जाके उनको यही बोलते हैं सरकार को कि साहब इनके थ्रू भी फ्रॉड हो सकता है, इसलिए इनको ऑडिट मैंडेटरी करें। तो अगर ये फ्रॉड्स नहीं रुकेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के थ्रू, तो फिर जो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज पे लगेगा वो प्राइवेट पे भी लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये हम सब पे है। इट इज इनकम्बेंट अपॉन अस कि हम कई जो प्रैक्टिस है उनको रुकवाएं छोटी कंपनीज के अंदर भी। So I think let me address those three issues together there. Yeah. Even right now also, the International Ethics Board is looking at three things as we speak. There is actually exposure draft which is already issued on fees, exposure draft already issued on non-assurance services. So if you go to the ISBA website today, these drafts were issued in January as exposure drafts. The comments were received. I think the date was extended because of COVID by a month, and the date was, I think, May. In our June meeting, we did not discuss. We actually have a meeting coming up for about 9 or 10 days in September, when the International Ethics Board will look at the comments of the stakeholders on these two issues, on fees revision and revision of the NAS. NAS is non-audit services. And the thrust of the International Board is, as Mr. Chopra rightly said, that as far as public interest entities are concerned, why should you permit any services and look at a conflict of interest? Let's cut it at the root of it, that an audit firm will not provide any service. So the question of conflict will not come. Because you see, when the conflict comes, then you say, how do you manage the conflict? How do you reduce the conflict? How do you bring it to an acceptable level, etc., etc. The stakeholders' expectation today is that why should you permit that? Maybe the business models will change because of that, but so be it. As Mr. Chopra said, in UK, they have given time to these 4 entities till 2024 to bring about all these changes. Change your business models. Make sure by 2024, that is the last date by which you will make these changes. And I think one more point which Mr. Chopra alluded on is public interest entity. This code actually has a definition of public interest entity. Internationally, what we are doing is, and since I'm on that board, there is a group made of about 4 ISBA board members who are looking at what should be the definition of public interest entity, because IAASB has a different definition, ISBA has a different definition, and we're trying to converge that also. But when we look at this,
This may still take about 6 months to 1 year for things to, finalized. Because what happens is the group is made, they will look at the things, they'll come back to the board. The board will give them a direction, they'll go back, meet the stakeholders. So these three areas, which is the areas on fees, the area of non-insurance services, and the definition of public interest entity. Even internationally, these things are undergoing a change. I think Mr. Chopra said that in India, it will happen probably sooner because we probably believe in doing things faster than the things which happen outside. I'm not going into the right or wrong. But if our firms have to grow, I don't know whether all the services should be prohibited. Because how will you grow the firms then? Then what may happen is that, I will have one firm in my name where I do the audit, and I may have a firm in my wife's name to do the services, the other services. That should not happen. Or in my friend's name, I'll give it to Munish, or give it to say, Nitika, you do this work. For your audit, I'll do the non-audit. For my audit, you do the non-audit. Let's have some arrangement. I mean, I know in the rotation where those companies which are listed but closely held, the auditors have changed hands within friends actually. Whereas if you go to some of the large firms, I mean, I remember when, Bharti had changed the auditor from one large firm to the other, all the other firms were, going and making a pitch to say, well, this is our audit proposal. And they were kind of interviewed and gone through a process. So audit rotation also, you see, what is one looking at? The independence, ethics, integrity. And that I think is applicable to a small firm also as applicable to a large firm, because independence of an auditor has to be the same for both. It is just that size is different. I mean, you see, for a smaller firm, a client which is 500 crores turnover is a large client. I mean, the client may say, look, I'm a small client when it comes to payment of fees, but 500 crore is a good amount of, turnover for any company. So some of these provisions, I don't know. The other concept is multidisciplinary firms. In our act today, if you look at some sections, our Institute Act permits multidisciplinary firms, that a CA, a cost accountant, a company secretary, a lawyer, an MBA, and I think one more body, there are 6 actually, we can have a multidisciplinary firm. The other institutes have not revised their acts and their regulations, and that is why it is not operational. As I understand, and I think Mr. Chopra may confirm, the MCA is looking at implementing these things also in the next 3 to 6 months. Now imagine you're permitting multidisciplinary firms, but at the same time, you may come back and say, look, a multidisciplinary CA firm will do only audit, because you're a CA firm registered with the institute. So once you're an auditor, then you can't do non-audit services. So I don't know what the government is looking at in the end, but yes, the independence of an auditor is a must. The next point I want to touch upon is prohibition on management responsibilities to the audit client. This code, again, for the first time, there is a separate chapter, a separate paragraphs on this as to what is management responsibility. And it says that a CA firm who's auditing a particular client cannot assume management responsibility. There's a difference between management service and management responsibility. You can provide a service to a client. The service is permitted. But if tomorrow one has to ask the client that, look, for example, supposing Nitika is providing to an audit client some issue on some advice on merger, that, you merge these 3 companies or demerge something. And tomorrow if you ask the client, look, this was the advice given, what did you do? What was your decision? And if the response comes from the client saying, well, Nitika is everything for us, she said this, she is an expert, we accepted it. Now, in a way, what is happening then is that Nitika is taking on the responsibility as a management also, because the management doesn't understand what they're doing as yes or no. Yeah. And that is prohibited. And that is where the independence will come in. Now, how will that happen in small clients? I don't know. A small meaning, I'm saying size small, because a small size client may not have all the experts with him. A large company may have experts in all the areas to take decisions. But if it is a company which is a proprietor or 2 partners or 3 partners who are all into running the business and doesn't understand the Companies Act and the income tax and the GST laws and the complications, they may not have a big CFO to help them with all this. Today, they rely on the
their consultant, the chartered accountant who does the audit. And Mr. Chopra said in the beginning, he or she does everything for the client. So in a way, he or she is assuming the management responsibility, which is not permitted. So where do you draw the line? So this is another area which is new in the code. The next point, which I think I must highlight, which has again been deferred. So the 3 points have been deferred. One is the applicability of no clerk. Second is the certain prohibition on the taxation services. 2. And third, the point which now I'm trying to will address is on the safeguard on fees from a single client. That also has been deferred. So these 3 points have been deferred to a date to be notified later. Now, what the new code says, that if your fee is more than 5 lakhs, and this 5 lakhs will not include your fee from the CAG, bank audit, the audits which are appointed by the government and the such bodies, your fees should not be more than 15% from one client and the related entities. Now, whether this figure should be 15% or 30% or 40%, or whether this 5 lakhs should be 25 lakhs or 30 lakhs, or whatever the case is, this provision is being relooked at. Our earlier provision in the earlier code was, which was more, I think, recommendatory, that you should not have more than 40% of this fees from a single client for a period of 2 years. I think my request, when I made a request to the council also, was that whatever you decide, whether you want to make this 15% as, say, 40% again or 30% again, please do so. But please make sure that it is even implemented. It is not that you make a law and it is then not implemented, and people who implement it and respect are the people who suffer actually. Now, I mean, look at the case of 65 tax audits. There's someone who has done 400 tax audits, someone who's done 1,000 tax audits. Has he been hanged till now? The answer is no. Some of us may not do more than 65 because we believe this restriction is there from the institute. Respect that. So I think somewhere, whatever we do in the institute as a regulation, the thrust also should be how it is implemented and how the punishments are given in a timely manner to 10 such people so that no such other member will do anything which is wrong ever. So this fee recommendation on 40%, and I said, this fee again is being looked at even internationally also. You see, internationally what they are saying is, for a PI, you may have 15%. For a non-PI, this can be for 5 years. We are also still debating whether 15% is correct or should it be 30%. And someone said, whatever percentage you keep, what do you mean that if you keep a percentage of say 30% tomorrow, that means on 29 you are independent, on 31 you are not independent. And where does this 30% comes from? And internationally they are saying that if this thing goes on for more than 2 years or 3 years, you should resign. In India, we are saying, I mean, the current code says, which is deferred, is that you talk to those who are in the governance and say either there's a pre-review or a post-review thereafter. So the question which I'm trying to address is that independence has to be seen for everyone who's doing the audit, small or big. In our country, we have some typical issues. We will have these restrictions. We will have these 30%, 40%, etc., whatever the council will decide. But this is again one such provision which is now deferred. I think before I go to anything else, I think one point which I want to bring out, which is fundamental to the code, is the fundamental principles actually. Those have not undergone a change. In fact, I must share this, that there are 5 fundamentals which were there in the earlier code of ISBA, our code, etc., which have remained the same. And those fundamental principles are integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and last, which is not the least important, is the professional behavior. I mean, if you look at these 5 fundamental principles, your entire code is dependent on these 5 fundamental principles. I mean, what does integrity means? That you should be straightforward and honest. I mean, does it require any other thing more than that a member of the institute should be straightforward and honest? I mean, when you look at professional competence, they say when a client, engages you, the client has a belief that you've kept yourself
up to date on the latest, whether it is professional standards, ethics, technical things, etc., etc. And when you do that work, you do it with due care. You take responsibility. You have the right people to do it. Your people are also trained. So, I mean, if you look at these 5 fundamental principles, you don't need anything more than that actually. And then they explain how these 5 fundamentals go to a conceptual framework. How do you look at safeguards? How do you look at, the risk? I mean, it talks about a self-review risk. It talks about intimidation risk. It talks about a familiarity risk, which is there in, when you know a client for long. It talks about intimidation risk, etc., etc. So I'm not going into detail of a lot of things, but I will touch upon a few other things. PI I spoke about. Okay, let me just touch upon NOCLAR. I have touched very briefly. Yeah, okay. One important point I think this code has is the definition of a key audit partner. And number of times we came across, cases where the questions were posed to a member in the disciplinary cases, well, who's your key audit partner? And a key audit partner is not defined anywhere. So if you look at the new code, it defines the key audit partner to say, it can be the engagement partner, the individual who's responsible for the engagement quality control review, and any other partner, if any, who's on the engagement team. So basically they're saying, you can be an engagement partner, you can be a engagement quality control review partner also, because these terms are important for the cooling off period. So our code today has a 7-year time on for a partner rotation. That means that if you're a partner on an audit client, you can be an audit partner for 7 years. And after that, there is a cooling off. This 2009 code also has this period of 7 years. 2019 has the same period, there is no change. So an engagement partner can be an audit partner for 7 years on a client. Now comes the cooling off period and why these terms are important. The 2009 code had a 2-year cooling off. That once you complete your 7 years, then you can't be an engagement partner for 2 years. You have to cool off. You have to take a step back, let someone else take over. The new code has 3 different timelines depending on the responsibility you had. So if you are an engagement partner, the cooling off period is not 2 years, it is now 5 years. But if you are an engagement quality control review partner, that means you are only advising the audit partner on the issues which are raised to you, on the quality, on the audit, on issues, etc., etc. Then the cooling off period is 3 years. But if you were any other audit partner on the client, then the cooling off period is only 2 years. So it is not the same yardstick applied to all. There are different timelines given. Now, this is coupled with the fact that we have a firm rotation. So someone had posed a question that will both go hand in hand, or will both get applicable, or only one. The code very clearly says that in India, firm rotation is coming from the Companies Act. Partner rotation is coming from our code. Both will apply. And someone had a question that what if I was, a EQCR for some years, engagement partner for a few years. So this code actually looks at a few permutations, combinations, and explains how this cooling off period will have to be computed and how this 7-year will have to be computed. I mean, I remember someone had asked a question that what if I had done 5 years in a firm and then I change a firm? Can I be a partner for 7 years again on the same client, supposing the client also moves? It rotates. Yeah, so the answer was no. Your earlier period also will be counted when you were the engagement partner. So you can't, change the name of a firm and continue for 7 and make it 14 years. So, so this code takes care of that also. I think it also very nicely brings out what happens in a cooling off period also. What can you do and what you can't do. So cooling off means cooling off really in letter and spirit. It's in substance, not in form. So it will not permit you to go and meet the client regularly. It will not allow you to take other services of the firm to the client. It in fact goes on to say that you will not even advise your own team members in the firm on the technical matters, because then you'll be giving them what you did in the client. The cooling off means that you get away and new pair of eyes should look at it.
So if you're allowed to do all that, then the cooling off has no meaning. So I think the cooling off has to be seen in the right manner. Non-assurance services, taxation I have touched upon. I think 2 points I would again, public interest entity also I explained. I think one point which I want to stress upon is the documentation. I think documentation is going to be the key in the years to come. I mean, I think sir will agree. Half the places what I saw in the disciplinary cases also and in the NAFRA, whatever I've seen from a distance, you know, the questions and the orders coming, they're asking questions, how did you solve this query? What did you do? And the answer was, well, you know, I had gone with Deepika, I discussed with the client, we sat across the table, we used to meet them every day. They're saying, sorry, we are not interested in your meetings every day. You show us the documentation, how you have resolved a query. What was the issue? What was the discussion and how you have solved it? You see, you may have taken a position which may not be acceptable to them, but as long as you show that you applied your mind and it gets proved from the documentation that you looked at it, then I think the law will be on your side more. I mean, this NOCLAR also tomorrow, whenever it comes, I think documentation is going to be the key. You look at a document, you form a view that this issue is not worth reporting. This issue is not significant. This issue is not major. As long as you have your analysis, your thought process documented, tomorrow you can show to someone. I mean, in the earlier days also, a member used to be held guilty when he was grossly negligent. Not that when you're negligent, not when there is an error of judgment. You see, I may not have the same view which Munish may have. Munish may have a different view on the same issue. But doesn't mean that whatever I have done is wrong or whatever Munish is saying is right. I can make a wrong judgment. That nobody will question you. But not looking at it or ignoring it, how will you prove it tomorrow? I think the documentation is going to be the key. Sir, hello. Yes, sir. Sir, considering all these aspects that the code defines, you know, the company that defines that the auditor has to behave in a particular manner, he has to take care of all these things. Does the code also define the independence of auditor? Oh, absolutely. Right. In fact, Manish, I think what we should do, you know, I spoke for 2.5 hours yesterday only on part A. And in 45 minutes, I'm just trying to cover some areas. For example, I'll touch on one more point before I hand over to Chopra Saab. You see, today when you get appointed, you write a letter to your previous auditor. Right? You must write. Yeah. Is there a compulsion on him to respond? No. No. The new code says, well, boss, you must respond. So how will Munish know? Why? And they say you must respond and provide information honestly and unambiguously. You see, you are resigning, Munish, and I don't know what I'm getting into. So, but what actually happens is when you resign, nobody bothers. No, MCA mein we have to give the reason why we are resigning. Practically, if you give So, the reason, what you're talking about is the listed entity only, right? I resigned from a company. I told him that I have resigned, but then the other person, it's one of the reputed firms. They accepted the audit and they did it. No, but Manish, they have to then explain how did they dealt with your objections at a later point of time, right? That's okay, but nobody bothers now. So my question is like, you know, what I feel is when I am appointed as the auditor, right? And the client appoints me as the auditor, basically, as per the Companies Act, the shareholders has the absolute power to appoint me, to, you know, remove me. They can do anything. Then where is the independence? Meaning? See, if an independent, like institute is an independent body, CAG is an independent body. If some body appoints me, then I am independent. If clients appoint me, he fixes my fees. I am dependent on him for my fees. How can there be an independence? No. Okay, so let me answer that question. I think this is going on. In fact, this code actually recognizes the fact. Maybe it's not in this code, in the new code, in the revised code on the fees. You will have this explanation also. That generally it is the management which decides the fee, right? And the shareholders approve it. Right. But this is a fact which is going on for Munish. years. Yeah. Chopra sir wants to say something. Sir, I'll just take one point and then you can take on. And I think I'll sign off in the end. ये point मैं आपकी presence में लेना चाहता हूँ मनीष के साथ actually. Please, sir, please. Politically, it's a very good statement. Whatever Manish has said. हम भी ये statement देते हैं.
इसमें भी कोई शक नहीं। मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग ऑडिट C&AG का कर रहे हैं या जितने ब्रांच ऑडिट्स के कर रहे हैं लोग या पहले करते थे, वो एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं करते रहे, फिर 95% केसेस में नील MOC क्यों आता? Why 95% of the branch audit there are nil MOCs? You tell me this particular answer. It is we don't want to work. That is becoming a problem. Sir, that is हम माने या ना माने बॉस, सर आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, मैं उसको 100% एग्री करता हूँ। Otherwise, what if that is the argument that I take everywhere? Of course, जो आप भाषा बोल रहे हो वो भाषा मैं कहीं और बोल रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कमेटी में। ठीक है सर। परंतु फैक्ट यही है कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका मतलब 1949 से आज तक जितने आप ऑडिट करते हैं कभी भी आप इंडिपेंडेंट नहीं थे। सर देखिए सर बैंक ऑडिट के अंदर सर इंडिपेंडेंस से अपॉइंट जरूर होते हैं, आई एग्री, बट MOC नील आता है या नहीं आता है, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं आपको 5 बार मैं 5 साइकिल्स गुजार चुका हूँ एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर। 90 से 95% MOCs नील हैं। 90 से 95% ब्रांचेस में MOC नील है। क्यों है बताओ तो सही। सर मैंने तो MOC नील कभी दिया नहीं है, मुझे पता नहीं है 90-95% क्यों नील है। No, you may be the 5%, yeah, but otherwise 95% ना। The problem lies somewhere else. It is not merely independent. C&AG में लोग क्यों compromise करते हैं? C&AG तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट है, वहां पे किन्हीं और चीजों के लिए कंप्रोमाइज करते हैं नहीं करते हैं? आप बताओ तो, दिल पे हाथ रख के बताओ तो, करते हैं या नहीं करते? मैं कभी गया नहीं CAG मेजॉरिटी। बॉस मेरी दिक्कत यहाँ पे है कि मैं इंडिपेंडेंस का नाम लेके वो सब काम किए जा रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए एक्चुअली। और जब हम कहीं पे जाते हैं, wherever we go, और हम एज लीडर्स कोई स्टैंड लेते हैं, वो हमारे पास एक ही डेट की 3 बैलेंस शीट दिखा देता हमें ऑडिटर की साइन की। क्या करूं उसका? सर then that means कल शाम से एक मेंबर का फोन आ रहा है बार बार कि साहब बैंक वालों ने मेरे से, मैंने कोई टैक्स ऑडिट किया था, उसके बारे में मैंने यूडीन जनरेट नहीं किया, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई यूडीन जनरेट नहीं किया तो आप उनको लिख के दे दो कि गलती होगी, यूडीन जनरेट नहीं किया। तो कहने लगा जी मैं रिपोर्ट दोबारा बना देता हूँ आज की डेट में। मैंने कहा आज की डेट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बना कैसे दोगे दोबारा? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कैसे दोबारा बना दोगे और आज यूडीन जनरेट करोगे? हाउ विल यू डू इट? कहने लगा जी किसको पता लगने वाला है कि मैंने यूडीन दोबारा जनरेट किया? द प्रॉब्लम इज कि हम खुद तो कुछ करते हैं एंड देन वी कीप ऑन ब्लेमिंग। क्लाइंट की गलती है, इसमें कोई शक नहीं, पर एक बात बताओ, अगर हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट ये ठान लें, सबका मतलब मेजॉरिटी ठान ले कि भाई हम गलत नहीं करेंगे साइन, तो फिर क्या होगा? क्लाइंट जाएगा कहाँ पे? जाएगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही ना। जो आपने एग्जांपल दिया कि आपने रिजाइन किया, दूसरे ने साइन कर दिया, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में गफलत है ना। हमने कारो में क्वेश्चन पूछ लिया, कारो 2020 में, कि whether the resigned auditor's observations have been duly taken care of by the incoming auditor or not. अब आपने कहा जी इससे कुछ होता नहीं, आपको मैं दिखा दूंगा क्या होता। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। अगर अब कहीं पे उसने क्लीन रिपोर्ट दी और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है कंसिडर नहीं की, इनकमिंग ऑडिटर का क्या असर हो सकता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी मेरी बात हो गई है MCA में, जो क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा था पहले, उनका ये कहना है कि एक्ट के अंदर पावर नहीं है MCA के पास अमेंड करने की इसको, क्योंकि द सेक्शन इज वेरी क्लियर कि इतना ही पीरियड है और उसमें पावर सिर्फ ROC की है एक्सटेंड करने की डेट। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है ROC को कि भाई आप लिबरल व्यू लेना, फीस जमा होगी आप दे देना एक्सटेंशन, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं अगर कोई ROC हिलूजत करता है, नहीं देता, वो आप हमें बता दो, हम करवा देंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। मतलब कि आपको ये लग रहा है कि 600 रुपए की फीस जाएगी, वो जाएगी, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। पर एक्ट के अंदर, क्योंकि एक्ट के अंदर उनके पास पावर नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट टू बी नोटिफाइड अंडर दी, ये ऐसा सेक्शन नहीं है
कि जिसमें कोई डेजिग्नेट सबऑर्डिनेटेड पावर हो अंडर द रूल्स, वो नहीं है इसमें। डेट्स जो है वो अंडर द एक्ट दी गई हैं और वो पार्लियामेंट तो जाके अमेंड करेगी नहीं डेट को आज के डेट में। Obviously. So I think whatever they have done, they have issued the instruction, they have issued the circular also to the ROC. So need not bother about it. पर 3 महीने से ज्यादा के नहीं मिल सकते किसी भी सूरत में, तो वो नहीं मिलेगी। So I think coming back, I'll just kind of finish it off. Now the previous auditor also will have to communicate. You know, the problem till now was that the previous auditor never used to communicate because he used to get a letter, response karo na karo, and the matter goes on. And I think last point which I just want to add is on the contingent fee. I'm not touching part B of the code today, which has more issues to deal with. Today, the contingent fees is not allowed except what regulation 192 says that, you know, if you are a liquidator, if you're doing an audit of a society where the fee is dependent on the working capital as a percentage or the assets as a percentage, etc., or where you're collecting debts and your fee is dependent on the amount of debt collected, etc. So those places it was permitted. 2 places the last council has permitted contingent fee. One was the new act which came on the insolvency law, which obviously came in 2016. So we had to amend our regulations to add that, because if a member of the institute today is working as a insolvency professional, his fee under the Insolvency Act is basis as a percentage of what he does. So it is a fee which is a percentage. He has to take that. And second, I think is very important for all of us to note is that a non-audit fee for a non-audit client. The question used to be that can you do that earlier? Earlier there was a total prohibition, but the council in its wisdom decided that when you are not an auditor, when your independence is not impacted, when you are not looking at any independence issues, and if the client is fine with you, so for example, if the client says tomorrow to a consultant that, look, I want to reduce cost, and the consultant says, well, you'll be able to reduce cost by say 10 crores. And the client says, okay, if I reduce cost by 10 crores, I'll give you 50 lakhs, but show me where is the reduction? Now, if that's a kind of an arrangement which client is fine with and a member is fine with, that his fee is dependent on a contingent fee, that also now has been permitted. So a non-audit services for a non-audit client going forward will be permitted as, you know, within the 4 corners of law. I think I stop here. In any case, I have taken more than the time given to me. Mr. Chopra has to speak on something which is more critical on the audit side, and I'm sure he'll touch upon some of the issues which I have raised from his side. So thank you very much, Manish, Fasin Saab, Nitika, and Sir for being around. Thank you very much. Thank you so much, Sanjeev sir. You've always been there whenever we've asked you to be there, and looking for more fruitful sessions in future. Absolutely. Look forward to it. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah. So, do I have to start? Yes, sir. All yours. नहीं, not all mine. मुझे मेरा exact topic बता दें आप, क्योंकि अभी तक तो कल तक मुझे ये idea था कि I may be speaking on code of ethics only after Sanjeev has left. Yeah. But today I'm in a little bit of a dilemma as to what exactly I'm supposed to speak on. आप मुझे बता दीजिए, I will speak on that. So I think let's continue with code of ethics now that sir has set the tempo right. So it will be nice if we continue with this one. During the process, I will also cover something on the auditing side also. What have been the deficiencies? Okay. Yes, sir. But if you want me to do audit of the SMEs, वो भी मैं कर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई issue नहीं है. To be very so I think code of ethics with regard to the small practitioners, how auditing, taxation, these consultancy services, how they are going to be impacted with the new code of ethics. Okay. Let me start on one note. Basically, I think Sanjeev has already set the tempo and I said certain things with regard to the independence. मैंने जिंदगी में कभी ये सोचा नहीं कि ethics को कभी codify किया जा सकता, सच्ची बात. I personally feel there is no way that you can codify the ethics. Ethics को आप law थोड़ी ना बना सकते. Ethics is something which is imbibed in you. It comes to you by way of your family traits, your family values,
your culture, your personal traits. कभी भी मुझे नहीं लगता कि ethics को आप codify कर सकें, very frankly, in life. Everything which is ethical is not necessarily legal also, and everything which is probably legal is not necessarily ethical also. I'll give you some of the examples. और ये एग्जाम्पल मैंने हर अपने प्रोग्राम में दिया, जहां पे भी मैं एथिक्स के ऊपर बोलूं, मैं शुरुआत यहीं से करता हूं कि भाई हम तो उस देश में रहते हैं जहां पे दो पार्टीज ने मिलके दो पार्टीज के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। मैं स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, पर आप समझ जाएंगे। और दोनों पार्टीज ने, मतलब दो पार्टी इस साइड में, दो पार्टीज उस साइड में, उन्होंने मिलकर खूब जम के एक दूसरे को गालियां निकाली कि जी ये करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, जो भी वर्ड चूज किए जा सकते थे वो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए। इलेक्शन खत्म हुए, वो जो पार्टीज दो जीती उसमें से एक पार्टी दो हारी हुई पार्टीज के साथ मिल गई और उनके साथ सरकार चला रही है, हारी हुई पार्टीज के साथ मिलकर। अब ये लीगल तो हो सकता है, इथिकल तो नहीं। मैं नहीं समझता कि ये इथिकल है किसी भी सूरत में, क्योंकि आपको जो मैंडेट दिया गया था वो मैंडेट ये था कि जो दो मेन पार्टी है वो मिलकर चलाएंगी। तीसरी पार्टी का कहीं भी जिक्र नहीं था कि तीसरी पार्टी कहीं पे पिक्चर में आएगी। परंतु तीसरी मतलब वो अब 2 और 1 हो गई। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और स्टेट है वहां पे 3 पार्टीज मिलके एक पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ी और तीनों पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई। फिर उसमें से एक पार्टी निकल गई और रातों रात जो हारी हुई पार्टी थी उसके साथ जाके मिल गई गवर्नर हाउस में, और आज वो दोनों पार्टीज मिलकर सरकार चला रही हैं। तो ये भाई इथिक्स तो कहीं नहीं परमिट करता, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, पर लीगल है, अब करें क्या। और हम तो वहां रहते हैं जहां पे लोग जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ लेते हैं और एमपी भी बन जाते हैं, एमएलए भी बन जाते हैं, और जेल से उनको पैरोल मिल जाती है टू गो एंड वोट, कास्ट ए वोट इन द पार्लियामेंट। हम तो यहां तक, हमारा लीगल सिस्टम तो यही है ना। अब ये मैं इसको एथिकल दृष्टि से बिल्कुल गलत समझता हूँ। लीगल दृष्टि से ये ठीक है, मैं इथिकल दृष्टि से उस बात को कहीं ज्यादा अच्छा समझता हूँ कि एक आप व्यक्ति रेड लाइट के ऊपर खड़ा है और रेड लाइट्स के उस पार उसने देखा कि कोई व्यक्ति गिर गया कहीं पे, उसने रेड लाइट जंप की और जाके उस व्यक्ति को सहारा दिया, उठाया, अपनी कार में बिठाया और जाके हॉस्पिटल छोड़ा। उसने रेड लाइट जंप की, ये तो इलीगल है, परंतु जो उसने किया उससे ज्यादा इथिकल और चीज नहीं हो सकती। तो आई थिंक इथिक्स एंड लॉ, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हम उस देश में हैं जहाँ पे सब लोग, हमारे यहाँ तो लॉ है डाउरी का, बेसिकली 2 बच्चियां मेरे सामने बिल्कुल देख रही हैं, इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, हमारे यहाँ डाउरी का लॉ है, परंतु वर्ल्ड वाइड डाउरी का लॉ कहीं नहीं है। पर मैक्सिमम डाउरी डेथ्स कहाँ होती है? हिंदुस्तान में होती है। तो इथिक्स और लॉ दोनों जरूरी नहीं कि इकट्ठे जाने चाहिए, अगर चले जाएं तो बहुत बढ़िया बात है। ये कहाँ पे लिखा है, ये क्या डिजायरेबल है जो अभी मनीष जी ने इशू उठाया कि मैंने रिजाइन किया, ये क्या मतलब कि कहीं लॉ में लिखा जाना चाहिए था कि जब मैं रिजाइन करूं किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो आने वाला व्यक्ति मेरे साथ कम्युनिकेट करे? मुझे नहीं लगता कहीं लिखा जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में ये तो इथिकल प्रैक्टिस थी और ये मेरे लिए कवच था, मेरी ढाल थी, मेरी शील्ड थी, मेरा मास्क था कि मैं उससे पूछता कि भाई तुम ये बताओ कि तुमने क्या देखा कि तुमने ये ऑडिट छोड़ दिया। आज की डेट में कोई 5000 का 500 का ऑडिट नहीं छोड़ता, और कोई व्यक्ति अगर कहीं पे 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का ऑडिट छोड़ रहा तो कोई कारण रहा होगा ना बेसिकली। तो क्या ये ड्यूटी वैसे नहीं बनती थी उसकी? और ये तो ठीक है, हमने अपने उसमें लॉ में लिख दिया, हमने शेड्यूल 1 में लिख दिया
कि भाई जो भी इनकमिंग ऑडिटर होगा वो प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करेगा। मैं कह रहा हूँ ना भी हो तो भी मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए। मेरे पास तो अगर कोई आर्टिकल ट्रांसफर लेके आए तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसके पिछले प्रिंसिपल से बात कर लूं कि भाई तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो। वो मेरी ढाल है कि वो शायद मुझे ये बता दे कि ये सिवा शरारतों के और यहाँ कुछ करता ही नहीं, काम ही नहीं करता कुछ भी, और ये बाकी एसोसिएशन बनाने की बात करता रहता बैठ के सारा दिन यहाँ पे। तो मेरे अपने हिसाब से कई चीजों का लॉ बनाने की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरल है कि वो होना चाहिए। हमें लॉ बनाना पड़ा क्योंकि शायद नहीं तो लोग करते नहीं किसी चीज को। तो ये, और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब मैं प्रेसिडेंट था 2010-11 में, अब पोजीशन कुछ और है, मैक्सिमम केसेस 80% केसेस हमारे नॉन कम्युनिकेशन के होते थे। और मेंबर की फीस कितनी होती थी उसमें? 1000 रुपया, 1500 रुपया, 5000 रुपया। और उसके लिए इंस्टीट्यूट वाला कितना खर्च कर देता था उसको डिसिप्लिनरी कमेटी में लाने का, हियरिंग करने का, कम से कम 2-2.5 लाख रुपया। मेंबर की 1000, 1500, 2500, 5000 की फीस के चक्कर में इंस्टीट्यूट का खर्चा कम से कम 2.5-3 लाख रुपया हो जाता। और उसके बाद भी हम पनिशमेंट क्या देते थे उसको कि भाई रेप्रीमेंट कर दो, क्योंकि जिस क्लाइंट ने हटाना है वो तो हटा ही देगा। वो इस साल नहीं हटाएगा, अगले साल हटा देगा आपको, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, हमने एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि अगर आपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई नहीं किए हुए और फिर आपने काम कर दिया, मतलब कि उसने रेजोल्यूशन ही बोगस पास किए हुए, वो नहीं हम परमिट करते। फिर उसमें तो नेम रिमूवल होता था बेसिकली मेंबर का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आज की डेट में जो केसेस आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार के आ रहे हैं, वो भी मैं बाद में बात करूंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जरूरी नहीं कि एथिक्स को आप लॉ का पार्ट बनाए, पर बनाया हमने शेड्यूल 1 भी बनाया, शेड्यूल 2 भी बनाया, उनके पार्ट्स भी बनाए, क्योंकि अदरवाइज शायद कई चीजें, क्या हमें ये लिखने की जरूरत है? मैं ये सबसे पूछना चाह रहा हूँ जो भी लोग प्रोग्राम में शामिल हैं 60 के करीब, कि भाई ये कहाँ लिखने की जरूरत है कि एक व्यक्ति को ड्यू डिलीजेंस के साथ काम करना चाहिए। क्योंकि शेड्यूल 2 जो हमारा है उसमें मेन क्या है कि if you are not exercise due diligence which is required of an auditor, in that case you can be held guilty. What is due diligence? Due diligence is कि अगर आप किसी का ऑडिट कर रहे हैं तो आपके उसको डेटर्स को भी कंफर्म करवाना चाहिए एसए 505 में, एडवांसेस को भी कंफर्म करवाना चाहिए एसए 505 में, क्रेडिटर्स को भी कंफर्म करवाना चाहिए एसए 505 में। किसकी बचत है उसमें? मेरी बचत नहीं है, आपकी बचत है, हम सब की बचत है। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये परचेज जेन्युइन है या नहीं है, ये सेल जेन्युइन है या नहीं है? अगर मैं पार्टी से कंफर्म करवाऊंगा तभी पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, एक पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का है, लिस्टेड एंटिटी है, उसमें ऑडिटर ने एसेट साइड तो कंफर्म करवाई हुई है पूरी की पूरी, लायबिलिटी साइड कुछ कंफर्म नहीं करवाई उसने। एसए 505 का क्या था? एसए 505 तो पार्टीज में डिफरेंशिएट नहीं करता, वो तो कहता पार्टी बैलेंसेस एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने लेने हैं ना। और अगर आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने तो उसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब बिल्कुल साफ है कि आपको वो सब कंफर्मेशन लेने जो कि आपके ऑडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और ऑडिट को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा कि भाई आपने सेल भी वेरीफाई करनी है, आपने परचेज भी वेरीफाई करनी है, आपने एडवांसेस भी वेरीफाई करने, तो वो वेरीफाई कैसे होंगे? What is the better evidence, internal evidence or the external evidence? External evidence. अगर सत्यम के केस में ऑडिटर ने बैंक से कंफर्मेशन डायरेक्टली ले लिया होता और राजू के ड्रॉर में से लेटर ना लिया होता तो सत्यम नहीं होता, क्योंकि राजू साहब ने निकाल के चिट्ठी दे दी, उसने कंफर्मेशन मान ली, तो राजू जी तो राज करते रहे और ऑडिटर गुलाम बन गया बेचारा, और वो भुगता अंदर भी रहा बेचारा, और काफी देर तक अंदर रहे दो ऑडिटर्स। तो मेरा अपना कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, कैसे 505 को हम देखते ही नहीं न। जब मैं एसएमएसएमई की बात भी करता हूँ, एमएसएमई की, कितने लोग टैक्स ऑडिट में
कंफर्म करवा रहे हैं डेटर्स क्रेडिटर्स को या एडवांसेस को, हाथ दिल पे हाथ रख के बोल दीजिएगा। ऑडिट के अंदर तो SA 505 मैंडेटरी है ना, रिकमेंडेटरी तो नहीं है। तो SA 505 की रिक्वायरमेंट जो है वो मैं मीट कर रहा हूँ क्या? नहीं मीट कर रहा हूँ। और जब मीट नहीं कर रहा हूँ तो फिर जो मेरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो जब होती हैं तो होती हैं। अभी एक केस हमारे पास आया, अहमदाबाद का था, और ऐसे 3 केसेस आए हमारे पास। ये आपको और बता दूं, ये पिछले साल भर के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, कि हमको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या CBI ने कंप्लेंट की है, और उन्होंने ये कहा कि ऑडिटर ने तो ऑडिट किया हुआ है, परंतु जिस भी एंटिटी का ऑडिट किया, पार्टनरशिप फर्म थी, वो एंटिटी उस एड्रेस पे एग्जिस्ट नहीं करती, और ये सिर्फ टर्नओवर क्रिएट की गई है और कुछ नहीं है। तो जब ऑडिटर साहब हमारे सामने अपीयर हुए तो हमने उनसे प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा जी आपने ऑडिट कहाँ बैठ के किया? कहने लगा जी अपने ऑफिस में बैठ के किया। हमने कहा आपको किताबें किसने ला के दी? बोला जी अकाउंटेंट ने ला के दी। हमने कहा आपने कभी पार्टनर से मुलाकात की? कहने लगा जी जरूरत ही नहीं, मुझे तो ऑडिट करना, मैं पार्टनर से क्यों मिलूं? अरे बैंक वाला तुम्हारी KYC करता है, तुमने सेविंग बैंक अकाउंट 500 रुपए का खोलना हो तो KYC करता। आप जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो, जिस पे आप हस्ताक्षर दे रहे हो, जिसकी इंटीग्रिटी को आप वाउच कर रहे हो कि भाई इसने सब कुछ ठीक ठाक किया हुआ, उसकी आप KYC नहीं करोगे, आप उसको मिलोगे ही नहीं। ये किसने कह दिया आपको? जब मैं 315 में, ऐसे 315 में बात करता हूँ रिस्क असेसमेंट की, बात करता हूँ नोइंग द बिजनेस की, उसमें इतना क्लियर है कि आपको बिजनेस के बारे में भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके के व्यक्ति हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। अगर उस व्यक्ति के अगेंस्ट सारे केसेस मर्डर के चल रहे हैं, सारे केसेस उसके हर तीसरे साल में टैक्स की रेड हुई है, तो आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट क्यों करते हो भाई, जिसके यहाँ हर तीसरे साल रेड होती है? और अगर आपने किया तो फिर आप अपने जान को अपना बवाल खुद किया। और ये व्यक्ति मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने बैठ के कि जी हमारे यहाँ, वो कहता है जी उस शहर में, वो उसका एग्जैक्ट सेंटेंस था, मैं शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ फॉर सर्टेन रीजंस, वो कहते हैं जी उस शहर में तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट के ऑफिस में जाके ऑडिट ही नहीं करता, अकाउंटेंट किताबें लेके आता, हम ऑडिट कर देते। तो हमने उससे पूछा भी तुमने इन्वेंट्री वेरीफाई की? कहते जी कहाँ जरूरत है, मैंने बैलेंस शीट में लिखा है एज सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट। हमने कहा तुमने कैश वेरीफाई किया? बोला जी मैंने लिखा है एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। मैंने कहा तो यार यही लिखते बैलेंस शीट एज सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट, तो ऑडिटर की जरूरत कहाँ थी? तो व्हाट वन इज ट्राइंग टू टेल यू इज, अब आप मुझे ये बताइए SA 5011 क्या, SA 501 क्या कहता है? ये नहीं कहता कि ऑडिटर को इन्वेंट्री के टाइम पे कभी कभार प्रेजेंट होना चाहिए कहता है ना। और ये भी कहता है, जब मैं 560 की बात करता हूं तो मुझे ये भी कहा जाता है कि भाई मैनेजमेंट जो रिप्रेजेंटेशन दे, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन को उसकी फेस वैल्यू के ऊपर नहीं लेना, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन को टेस्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिसिटी एंड जेन्युइनिटी। तो जेन्युइनिटी और वेरिसिटी क्या है कि सपोज कीजिए उसने दिखाया हुआ है अपनी बैलेंस शीट के अंदर चेक्स इन हैंड 5 लाख के, तो मैं ये टेस्ट नहीं करूंगा कि अगले हफ्ते भर में वो डिपॉजिट हो गए या नहीं हो गए 31 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक। अगर नहीं जमा हुए तो क्या मतलब है, चेक सही नहीं ना कभी। इसका मतलब डेटर्स जो थे वो आपने सप्रेस कर दिए, डेटर्स में आपने क्रेडिट कर दिया और चेक्स इन हैंड को डेबिट कर लिया। अगर उसने इन्वेंट्री कही है तो इन्वेंट्री मुझे वेरीफाई तो करनी पड़ेगी, रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। अगर वो स्टॉक रजिस्टर नहीं मेंटेन कर रहा तो भी A क्लास B क्लास आइटम्स का रिकंसिलिएशन तो करूंगा, कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं आप पे छोड़ देता हूं। फिर मुनीश जी कहेंगे अब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। अरे सर मेरा तो हर साल टैक्स सर ऑडिट के अंदर तो आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, पार्टनरशिप फॉर्म में, कंपनी एक्ट तो है नहीं। सर मेरे तो और हर इनकम टैक्स वाला तो आपको अपॉइंट साल करेगा नहीं, इनकम टैक्स वाले ने अपॉइंट किया तो आपसे पहले मांग लेगा जो आज बाद में मांगता। फिर क्या करोगे, फिर इंडिपेंडेंस कहाँ जाएगी? जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है फिर? पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव यू होम इज
कि अगर मुझे मैनेजमेंट की ही हर बात माननी है कि इन्वेंट्री भी उसने दी, वैल्यूएशन की ड्यूटी मेरी नहीं है क्या? वैल्यूएशन चेक करने की ड्यूटी मेरी है ना, कि फीफो मेथड अडॉप्ट किया, लिफो मेथड अडॉप्ट किया, वेटेड एवरेज लिया, डायरेक्ट कॉस्ट लिया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिया, क्या लिया है? ड्यूटी नहीं है मेरी चेक करने की। हमने उससे पूछा तुमने सेल्स कैसे वेरीफाई की? लेजर देखा। हमने कहा वैट रिटर्न्स देखी थी? नहीं देखी थी। वैट रिटर्न देखने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा यार कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, फिर इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती तुम्हारी। तुम ये कह रहे हो कि आपकी ड्यूटी कुछ नहीं थी, जो ड्यूटी है वो यहाँ तो डिसिप्लिनरी कमेटी की है या क्लाइंट की है। और बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कि उस जगह पे वो ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप बताइए कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए और कौन सा हुआ? The point I am trying to drive, मैंने तो कुछ आपको स्टैंडर्ड बता दिया in the process basically if you ask me. The point I am trying to drive you home is कि भाई छोटा सा ऑडिट है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैं नहीं करता। अच्छा मजेदारी की बात ये, जिन व्यक्ति का मैं केस कल रात वाला बता रहा था आपको, वो आज एक बड़ी भयंकर बात होगी उसमें, और भयंकर बात ये हो गई, मैंने कहा यार तुमने टैक्स ऑडिट कैसे कर दिया? टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट तो दे दी मैंने सोचा यूडी नहीं लगाना। मैंने कहा बैलेंस शीट आपने साइन की होगी। उनका जवाब पता क्या था? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। बोले जी बैलेंस शीट टैक्स ऑडिट के साथ कहां से आ गई? तो मुझे ये लगा कि धरती मेरे पांव तले से निकलनी तो उनके पांव तले से चाहिए थी। मैंने कहा यार तुमने एक 3CB दिया होगा, तो 3CB किसके कनेक्शन में दिया? तो सोच के बोले हाँ जी एक दिया तो है, 3CB दिया तो है। फेयर व्यू का ही दिया। मैंने कहा 3CB ट्रू एंड फेयर का दिया तो किसका ट्रू एंड फेयर व्यू था यार, ये बता दो मुझे। उसके बाद उन्होंने माना हाँ जी वाकई में टैक्स ऑडिट में बैलेंस शीट भी थी। मैंने कहा अगर बैलेंस शीट साइन की थी तो उससे पहले यूडिन जनरेट करना तो जरूरी था, और आपने नहीं किया तो आप बैंक वाले को लिख के दे दो ना, गलती हो गई यूडिन नहीं जनरेट किया। आज आप नया तरीका क्यों ढूंढ रहे हो उसको कवर अप करने का? व्हाई डू यू वांट टू कमिट ए मिस्टेक ओवर अ मिस्टेक? हमें दूसरी बात कहता हूँ, हमें से कितने लोग हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर होता? ये कोड ऑफ एथिक्स में लिखना चाहिए क्या? है चलो कनिका अच्छी बात है, और अमनजीत अच्छी बात है। स्कोप ऑफ वर्क भी होता है बकायदा। नहीं खड़ा किया हाथ में, ये बता सकता हूँ आपको। रमनीत ने खड़ा किया। उनके बिहाफ पर। So the point that I'm again trying to make to you is अपॉइंटमेंट लेटर तो चाहिए। हमारे पास जब डिसिप्लिनरी की कमेटी के सामने नॉन कम्युनिकेशन केसेस आते थे तो अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिलता। सच्ची बात तो ये सर आज भी नहीं मिलता अपॉइंटमेंट लेटर, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर मिले तो आधी बात तो फिर वहां पे कवर हो जाए। सर ऐप प्रॉब्लम ते सबनू पता है, ये जो नया कोड ऑफ एथिक्स है सर सोल्यूशन की है, की करना चाहिए? संजीव जी आपको बात करके गए अभी मैं उस बात को थोड़ा आगे चला रहा हूँ। मैंने सोचा आपको उस एग्जांपल से शुरू करूं जो एग्जांपल बहुत रेलेवेंट है। एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, क्योंकि हमारा एक ऐसे है जो ये कहता है कि आप प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर जो प्रोजेक्शन हैं आप सर्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना? है कोई 540-41 के आसपास का कुछ होगा, जरूर होगा मेरे हिसाब से, देख लेना जाकर। अगर वो है तो वो ये कहता है आप करो, आपको मना नहीं कर रहा हूं, परंतु ये आपने रिपोर्ट देनी है कि ना तो मैंने इसका ऑडिट किया ना मैंने इसका रिव्यू किया। ये अगर कुछ किया गया है तो ये किया गया है इसकी अजम्पशन प्रिजम्पशंस मैनेजमेंट की है। सीधी सी बात इतनी सी। इतना भी आपने कर दिया, काफी कर दिया। परंतु जब मैं अब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के, बड़ा अच्छा लगता है जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता हूँ ना, उसके कवर के ऊपर लिखता हूँ प्रिपेयर्ड बाय सो एंड सो एसोसिएट्स,
लगता तो बहुत अच्छा, अंदर रिपोर्ट कुछ देता नहीं। और उसमें फिर फिगर इतनी मजेदार होती है। अभी साउथ में 3 केसेस किए हमने, सदर्न रीजन के। लकीली नॉर्थ का केस ऐसा कोई मिला नहीं अभी तक, ये खुशी की बात है मेरे लिए। सदर्न में टर्नओवर बढ़ गई, लिमिट भी बढ़ गई, इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। तो मैंने कहा भाई इंटरेस्ट क्यों नहीं बढ़ा? जी बस बढ़ा नहीं। मैंने कहा बढ़ा नहीं, ये तो मैं भी देख रहा हूँ प्रोजेक्शन में। पर एक बार बता, अगर तेरी लिमिट 10 करोड़ से 15 करोड़ हुई तो इंटरेस्ट तो तेरा 9 से 4.5% हुआ नहीं, या 6% हुआ नहीं, तो तेरा इंटरेस्ट भी बढ़ना चाहिए था, इंटरेस्ट तेरा बढ़ा नहीं। तो कहते जी एवरेज यूटिलाइजेशन शायद कम हुई होगी। मैंने कहा अगर एवरेज यूटिलाइजेशन कम हुई होगी तो फिर तेरी टर्नओवर नहीं बढ़नी चाहिए किसी भी सूरत में। तो फंस गया बेचारा। एम्प्लॉय कॉस्ट डाउन हो गई, टर्नओवर 1.5 गुनी 2 गुनी 3 गुनी चलती जा रही है। तो ये चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। बट दिस इज द वे दैट वी गो ऑन, बिलीव मी, दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट। क्योंकि होना क्या है, मैं ये कोशिश करता हूं कि कहीं पे प्रॉफिट दिखाना मुझे, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रॉफिट ना दिखाया तो फिर मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो लोन नहीं मिलेगा, और लोन नहीं मिलेगा तो क्लाइंट फीस नहीं देगा। तो मैं हर एक हथकंडा अपना लेता हूं, ये भी हथकंडा अपने लेता हूं कि डेप्रिसिएशन भी नहीं दिखाता कई बारी, तो क्योंकि डेप्रिसिएशन डाल दूंगा तो लॉस हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को नोट में ले जाता हूं। अरे डेप्रिसिएशन तो भैया एज पर AS10 मैंडेटरी है, पहले एज पर AS6 मैंडेटरी था। तो ये तो MSME की बात कर रहा हूं मैं ये बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं। ये सब हम लोग कर रहे हैं, including me. We are resorting to these kind of practices. So what I am trying to tell you is, चलो थोड़ा सा ध्यान करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, अच्छी बात है, फीस लेनी चाहिए, क्लाइंट से भी फीस लेनी चाहिए, परंतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसी बनाएं जो क्रेडिबल हो और जो कल मेरे पे मिसफायर नहीं करे। उसमें बैलेंसिंग फिगर्स नहीं निकलनी चाहिए। अभी आपको कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, कुछ दिन पहले की, सिर्फ 8 साल की या 7 साल की बैक डेटिंग हुई किसी बैलेंस शीट की, प्रोबेबली बैक डेटिंग हुई, मैं ये कह सकता हूं। 8 साल के अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए, 8 साल के अपॉइंटमेंट लेटर था उसके पास, राइट फ्रॉम, मतलब कि वो ऑडिटर तो 84-85 से उसका कंपनी का, पर जो हमारे सामने आए हैं वो 2011 तक के आए हैं अपॉइंटमेंट लेटर, और हर अपॉइंटमेंट लेटर में वो फर्स्ट ऑडिटर ही है कंपनी का। हम कुछ मतलब समझे नहीं समझे मेरा? ये फर्स्ट ऑर्डर जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो रहा है, हर अपॉइंटमेंट लेटर में वो फर्स्ट ऑडिटर है। मतलब वो कॉपी वो पेस्ट उसको वो नहीं करा, अपॉइंटमेंट फाइल लेटर नहीं तो करा, एक दिन बने सारे के अपॉइंटमेंट सारे। लेटर तो है। हाँ। चलो यहाँ तक भी अपॉइंटमेंट लेटर तक भी हम निपट लेते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट हर साल 1 सितंबर को साइन हुई, बैलेंस शीट हर साल 30 सितंबर को साइन हुई, एनुअल जनरल मीटिंग ये कैसे हर possible? साल 30 सितंबर को होल्ड हुई। एजीएम मैंने कहा यार ये तरीका बता दे, हाथ जोड़ के उससे पूछा, ये तरीका बता कि 30 सितंबर को तेरी बैलेंस शीट साइन हो, 1 सितंबर को तू ऑडिटर रिपोर्ट भी दे दे, और 30 सितंबर को एजीएम भी हो जाए। तरीका बता दे, मैं भी ये आर्ट सीख लूं तेरे से कम से कम। और उससे बढ़िया बात ये कि जितनी बैलेंस शीट बनाई 8 साल में, जितनी लायबिलिटी साइड में, क्योंकि कंपनी में और कोई बिजनेस नहीं, जो रियल एस्टेट की कंपनी है, झगड़ा जो डिस्प्यूट है आपस में वो प्रॉपर्टी का है पार्टीज के बीच में, और कुछ नहीं है, एक पैसे की ट्रांजैक्शन और नहीं है। जो बैलेंसेस जहां खड़े हैं वहीं खड़े हैं, सिर्फ 2 एंट्रीज बदल रही हैं, एक तो ऑडिट फी पेबल की और एक कैश इन हैंड की। जितनी ऑडिट फी पेबल बढ़ती है उतना कैश इन हैंड बढ़ जाता है। तो मैंने कहा भाई अगर तेरी ऑडिट फी P&L में भी चार्ज हो रही होती तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर बैलेंस शीट में तो आती। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो फिगर भी नहीं है किसी साल में। आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरीके के ऑडिट के, ये MSME के ऑडिट है।
ये MSME के ऑडिट हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि नफरा ऊपर आ गया हमारे। नफरा क्या, मैं कहता हूँ कोई और लफड़ा भी आएगा अभी तो ऊपर। If we don't mend our ways, तो बहुत कुछ आएगा। और ये एग्जाम्पल मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये तो क्लास एग्जाम्पल है। हम तो सारी अकाउंटिंग भूल गए कि लायबिलिटी बढ़े तो कैश इन हैंड बढ़ जाए मेरा, उतने से ही। अगर 1050 से मेरी ऑडिट फी बढ़ी तो 1050 से कैश इन हैंड बढ़ गया। अगर 1500 से मेरी ऑडिट फी बढ़ी तो 1500 से मेरा कैश इन हैंड बढ़ गया, क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली होनी है ना। एक तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक जगह एसेट बढ़ेगी। मतलब कैसे पॉसिबल है? तो अब इससे ज्यादा मैं आपको और क्या एग्जांपल्स दूं, मुझे बताइए। ड्यू डिलीजेंस के एग्जांपल और दूं कोई कि कितनी बढ़िया, मतलब कि कोई नेग्लिजेंस ही नहीं है ऑडिटर के पार्ट। 1 सितंबर को रिपोर्ट दो, 30 नवंबर को साइन करो बैलेंस शीट को। कोई समस्या ही नहीं जिंदगी में। समस्या होगी तो डिसिप्लिनरी कमेटी को होगी, वो ढूंढेगा बेचारा बैठ के कि भाई 8 साल में इसने कैसे एक ही बैलेंस शीट साइन की, एक ही डेट में। क्योंकि फाइलिंग, कंप्लेंट कहां से शुरू हुई, फाइलिंग सारी की सारी एक ही डेट में हुई आरओसी के पास। अपॉइंटमेंट लेटर एक ही डेट में फाइल हुए सर। इसीलिए उसमें जो फर्स्ट ऑडिटर वो शुरू में था, वो आखिर तक फर्स्ट ऑडिटर ही चल रहा। और क्या बोल रहे हैं आपसे। कमिंग बैक टू द कोड ऑफ कंडक्ट, संजीव जी बोल के गए आपको कि भाई उन्होंने एक नोक्लर की बात की, पर नोक्लर से पहले मैं कुछ और चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए बेसिक कुछ मुद्दे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इस पूरे न्यू कोड ऑफ एथिक्स में एक बात बहुत अच्छी कही उन्होंने। कहा जी अपना इंडिपेंडेंस जो थ्रेट है, जो आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, उसको आपको इवेल्युएट करना है, उसको आपको डॉक्यूमेंट जरूर करना है। उन्होंने पहला थ्रेट बोला इंडिपेंडेंस का थ्रेट, जिसमें उन्होंने बोला कि आपका एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां से हो सकता? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हो सकता है कि मेरी वाइफ उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो और मैं ऑडिटर हूँ। आपको ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ मैं डिसाइडेड केस दिखा देता हूँ आपको मेरे पास, और ये सिर्फ 8 महीने पहले हमने डिसाइड किया होगा कि 8 महीने या 10 महीने पहले। वाइफ एमडी कंपनी की 33% शेयर होल्ड कर रखे हैं और मैं ही ऑडिटर हूँ। तो हमने उससे पूछा भी तुमने इसका ऑडिट क्यों किया? कहने लगा जी मैं जैसे ही बस, अब देखिए अब एमडी नहीं। हमने कहा अब एमडी की बात नहीं कर, एमडी थी या नहीं थी इस कंपनी की, और 33% शेयर थे या नहीं थे? 33% शेयर तो थे पर नॉन वोटिंग राइट्स थे। हमने कहा अगर आपके प्रॉफिट्स अच्छे होते तो नॉन वोटिंग राइट्स तो थे, पर डिविडेंड का तो ऐसा नहीं था ना कि आपका राइट नहीं था डिविडेंड को। डिविडेंड पे तो आपका राइट था ना पूरा। और जो हमने उसको एनुअल रिटर्न का फॉर्म दिखवा दिया कि भाई तुम एनुअल रिटर्न में बता दो कहां लिखा कि ये नॉन वोटिंग राइट्स थे, नॉन वोटिंग शेयर्स थे। वो कहीं लिखा नहीं हुआ आपने। तो ये तो आपकी आफ्टर थॉट है कि ये नॉन वोटिंग शेयर्स थे बेसिकली। तो आपके फादर हो, आपके मदर हो, आपका ब्रदर हो, आपकी सिस्टर हो, आपका सन हो, आपकी डॉटर हो, ये सब आपके कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? अगर ये इनकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, उसमें क्या होगा? क्या आप क्या चाहेंगे कि प्रॉफिट इसमें बेहतर दिखाया जाए? प्रॉफिट क्यों बेहतर दिखाया जाए? कि इनको डिविडेंड बेहतर मिल सकता है। इसकी अच्छी क्यों दिखाई जाए वर्किंग? इनको कमीशन उसमें से अच्छी मिल सकती है। ये सब चीजें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका। एक आपका रहता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की संजीव जी ने। और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ और बड़े बढ़िया एग्जांपल दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट में। उन्होंने कहा कि भाई ये भी देख लो कि दिवाली दशहरे पे वो आपको किस तरीके का गिफ्ट दे के जा रहा। T&L में तो आपकी ऑडिट फी डेबिट होती है 5,000 रुपए की। टीवी सेट वो आपको दे जाता है आपकी दिवाली के ऊपर 50,000 रुपए का। तो भैया फिर इंडिपेंडेंस थ्रेट तो है ही। अगर मैं फीस तो उससे लेता हूँ 10,000 रुपए की और वो मुझे दे जाता है गिन्नी सोने की, और वो आज के रेट पे 54,000 वाले पे, तो भैया मेरे को इंडिपेंडेंस, मेरा डेफिनेटली कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं, विदाउट डाउट। माय इंडिपेंडेंस कैन बी जेपरडाइज्ड
अब हम बाकी बातों पे तो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट कोई और करता है। अरे अपॉइंटमेंट तो कोई और करता है। अगर मैं ऑडिट सर्विसेज में उससे फीस इधर उधर तिकड़म भिड़ा के, या कोई कोई चीज अपनी बेटी के नाम में, कोई अपनी वाइफ के नाम में, कोई ब्रदर के नाम में, किसी और के नाम में अगर करता रहूं, तो वो इंडिपेंडेंस थ्रेट नहीं है क्या मुझे? बिल्कुल मेरी इंडिपेंडेंस थ्रेट है। Why only independence threat is caused by the appointment? Independence threat is also caused by my other income from the same person. From the same person, if I am getting certain gifts which are costly, वो मेरी ट्रिप स्पॉन्सर कर देता बाहर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ट्रिप क्यों नहीं होनी चाहिए बाहर? इसीलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता उसके बाद। हालांकि अनिल अंबानी जी करते थे, ये भी आपको बता दूं। उनके यहाँ पे हर साल सारे डायरेक्टर्स को, उनकी फैमिलीज को साल में एक ट्रिप बाहर की मिलती थी। इसलिए अनिल अंबानी ग्रुप का जो हाल है वो आपके सामने है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट था ही नहीं बोलने के लायक। सर अगर आपका Because ब्रदर nobody या could वाइफ have spoken any प्रोफेशनल है, word. And सर today अगर we all know what has आपका happened वाइफ, to Anil Ambani Group. I don't have to say you any, I don't have to tell you anything. Basically, सर अगर the आपकी point वाइफ is, प्रोफेशनल सर्विस दे रही है तो इंडिपेंडेंस सिर्फ अपॉइंटमेंट से ही थ्रेटन नहीं होती। इंडिपेंडेंस कई और मुद्दों से थ्रेटन होती है। मैं पार्टी को यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, मेरे बेटे को नौकरी दे दो जी, उसमें भी मेरी इंडिपेंडेंस थ्रेट है। दूसरा है मेरा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है मेरा? कि मैंने ही काम किया और मैंने ही उसका ऑडिट करना। मैंने टैक्स प्रोविजन के ऊपर उनको ओपिनियन दिया और मैंने ही उस टैक्स प्रोविजन का ऑडिट करना। मैंने किसी कंपनी लॉ के मैटर पे उनको ओपिनियन दिया और मैंने ही ऑडिट करना। तो डेफिनेटली वो जो है, दैट इज अ सेल्फ थ्रेट टू मी, बेसिकली सेल्फ रिव्यू थ्रेट टू मी। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि कोई भी आप ऐसा काम मत करें जिसका आपने खुद ही ऑडिट करना हो, और अगर आपने खुद ही ऑडिट करना है उसका, तो फिर आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। उन्होंने एक चीज परमिट की है अभी, उन्होंने ये कहा कि आप ऑडिटर हैं, आप ऑडिटिंग पार्टनर हैं, आपके टैक्स पार्टनर कोई और नहीं। आप ये सोच लीजिए कि आपको सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट आ रहा है नहीं आ रहा, कि आपका जो दूसरा पार्टनर है, टैक्स वाला पार्टनर, वो आपको कोई ओपिनियन दे दे टैक्स मैटर्स के ऊपर। मेरा अपना ये मानना है ये बिल्कुल गलत है, ये प्रोविजन ही गलत है कि जो मेरा टैक्स का पार्टनर है वो ओपिनियन दे सकता। क्योंकि अगर मेरा टैक्स का पार्टनर ओपिनियन देगा, पहली बात तो ये मैं अपने ही, फीस किसको जाएगी? फीस तो उसको नहीं जाएगी ना, फीस तो फर्म को आएगी, और फीस अगर फर्म को आएगी तो शेयर तो मैं भी करूंगा। ये कहाँ लिखा है कि ऑडिट पार्टनर जो है वो टैक्स वाले की फीस शेयर नहीं करेगा या टैक्स वाला ऑडिट की नहीं शेयर करेगा? तो डेफिनेटली मेरा एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अलावा मेरी एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि उस ओपिनियन से जो फीस आनी है उसमें मेरा भी हक, मेरे को भी उसमें शेयर मिलना, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, सीधी सी बात है। एक उन्होंने और बड़ा बढ़िया बात की, उन्होंने कहा भी जहां पे आप टैक्स का काम कर रहे हो और ऑडिट भी कर रहे हो, तो ये सोच लेना कि आपको उनके टैक्स के अपील मैटर्स हैंडल करने हैं या नहीं करने। रिप्रेजेंटेशन तक तो ठीक है कि आप हैंडल कर रहे हो, परंतु आपको उनके टैक्स के अपील मैटर्स हैंडल करने हैं या नहीं करने, उसका कारण है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसी बेबुनियाद बात पे नहीं कही गई ये बात। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अलाउ की गई है, परंतु एक आपको रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट ही बता रहा हूँ पुराना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने किसी का ऑडिट किया, टैक्स में रिप्रेजेंट करते हुए किन्हीं एक्सपेंसेस पे ये नोट शीट पे साइन कराए दैट आई एग्री टू द एडिशन फॉर द अनवाउच्ड एक्सपेंसेस। अब मतलब समझिएगा मेरा, मैं ऑडिटर हूं, मैं टैक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और टैक्स में रिप्रेजेंट करते हुए मैंने नोट शीट जो और उसकी थी इनकम टैक्स ऑफिसर की, उस पे ये साइन कर दिया कि आई एग्री टू अनवाउच्ड एक्सपेंसेस एडिशन टू सम एक्सटेंट। तो भैया ऑडिट किसने किया था?
मैं नहीं गया था, तो मेरे पे तो कोड ऑफ कंडक्ट सीधा सीधा गया, मैं बच ही नहीं सकता उस केस में। अगर मैं सपोज कीजिए वो ये कहे कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपका इस साल कम हुआ, मैं 10.6% से इसको 10.8% करता हूँ और मैं एग्री करके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या? या तो मेरी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री गलत है, या मेरी परचेजेस गलत है, या मेरा सेल का मार्जिन गलत था। और अगर मैंने साइन कर दिया ना टैक्स रिप्रेजेंटेशन में, मुझे कोई बचा नहीं सकता कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट सबसे है कि जहां पे आप ऑडिटर हैं वहां पे सेम पार्टनर को किसी भी सूरत में रिप्रेजेंट करते हुए किसी भी एडिशन के ऊपर एग्री नहीं करना। वो करे एडिशन करना, उसकी मर्जी है, या क्लाइंट को साइन करवाइए, एडिशन के ऊपर साइन करवाना तो क्लाइंट को करवाने दो, आप मत करिए कभी भी। और दूसरा वो ये कहता है कि आपने अपील अगर की, और सपोज कीजिए अपील आपके अगेंस्ट डिसाइड हो गई और आप ही अपील कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू हैव लॉस्ट आउट द बैटल। अगर आपके अनवॉइड एक्सपेंसेस की अपील थी, आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अपील थी और आप हार गए उसमें, तो उसका मतलब क्या आपके ऑडिट पे तो सीधी सीधी रिफ्लेक्शन है ना। इज इट नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन योर ऑडिट? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन योर ऑडिट। सो इसलिए वो ये कहता है कि आप इसको डिसाइड करिएगा अपने आप कि आपको उन केसेस में करनी है या नहीं करनी है अपील। क्योंकि अपील में आपको हमेशा ये रिस्क है, जिन जिन एरियाज में आपका नहीं है, ऑडिट का पॉइंट नहीं, कोई और पॉइंट बेसिकली पर्सनल एक्सपेंसेस उसके वो डिसअलाउ कर रहा है। वो पर्सनल एक्सपेंसेस कितने एक्सटेंड तक होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं, पर एक्सपेंसेस की वो ये लेके कि जी ये एक्सपेंसेस जस्टिफाइड नहीं है, जेन्युइन नहीं है, बहुत फर्क है दोनों में। वो ये कहते हैं ये एक्सपेंसेस जेन्युइन ही नहीं है और आप अपील हार जाते हैं, तो भैया फिर तो ऑडिटर के ऊपर सीधी सीधी रिफ्लेक्शन है कि आपने चेक क्या किया। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मुद्दा इस न्यू कोड ऑफ एथिक्स में बड़ा क्लियरली उभर के आया है। एक उसमें उन्होंने दिया कि आपको अगर थ्रेट है, एक आपको थ्रेट है, मतलब कि आप जिसको एक थ्रेट ऑफ एडवोकेसी बोलते हैं। थ्रेट ऑफ एडवोकेसी में तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए कि जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसी का आप आगे, जैसे पब्लिक इश्यू आया तो आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके शामिल नहीं हो सकते। और अगर आपने ही उसके शेयर बेचने शुरू कर दिए, आपने उसका एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया, आप नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। इट इज एन एडवोकेसी थ्रेट, यू कांट डू इट। एक उसने कहा इंटिमिडेशन थ्रेट है। आपको ये सब थ्रेट्स को पहले असेस करना है, फिर उसको मिटिगेट करना है, और मिटिगेट करने के बाद फिर डिसीजन लेना है कि आपने इसका ऑडिट करना है या नहीं करना है। मैं आई विल टेल यू ऑल दैट डॉक्यूमेंटेशन आल्सो। वो कहता है आपको इंटिमिडेशन थ्रेट है। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है? कि आपके मन में एक डर है। डर क्या है? कि मेरा बेटा इसके पास नौकरी करता है, अगर मैंने इसकी रिपोर्ट क्वालिफाई की तो ये उसको टर्मिनेट कर देगा। मेरी वाइफ इसके पास नौकरी करती है, अगर मैंने कुछ किया, मेरे फादर नौकरी करते हैं, किसी भी पोजीशन पे करते हैं, तो उनको टर्मिनेट कर देगा। अगर आपको ये लगता है ये थ्रेट है आपका, तो ये किसको थ्रेट है? ये आपकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है ना अल्टीमेटली। तो ये आपकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ही तो थ्रेटन कर रहा है। तो ये कहता है इसको आप असेस करें पहले, और अगर आपको ये लगता है कि आप इसके अगेंस्ट कुछ लिख नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस इंटिमिडेशन थ्रेट, तो आप उसका ऑडिट मत करें। बड़ा क्लियर है। तो यहाँ पे मतलब क्या है? मतलब बड़ा साफ है कि जब आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जितनी बिग फोर हैं वो अपने पार्टनर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, जिन बैंक्स का वो ऑडिट करते हैं उनका क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेने देते, क्योंकि अगर आप इंडेटेड हैं उसी बैंक को बियॉन्ड ए पर्टिकुलर अमाउंट, तो आप तो वैसे डिस्क्वालिफाइड अंडर 141। तो 141 की
आपको सबसे पहले सारे पार्टनर से डिक्लेरेशन लेनी है, सारे पार्टनर से डिक्लेरेशन लेनी है कि भाई आप, और सारे पार्टनर से और उनकी आगे रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव है उनसे डिक्लेरेशन लेनी है कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखी इस कंपनी में। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस कंपनी में तो ये माना जाएगा कि आप ये नहीं चाहेंगे कि उसका प्राइस डाउन हो जाए या उनको डिविडेंड ना मिले। तो आप उस थ्रेट को एलिमिनेट कैसे करते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन आपने क्या की है वो देखी जाएगी। और आज से ये एक बात आपको और बता के जा रहा हूँ, जो अगला पीयर रिव्यूअर आपके यहाँ आएगा, क्योंकि पीयर रिव्यू स्टेटमेंट पूरा बदल गया, वो आपके ये सब चीजें आके चेक करने वाला है। ये बिल्कुल ध्यान जहन में रखिएगा आप कि जैसे ही आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं उससे पहले आपने क्या स्टेप लिए कि ये सारे के सारे थ्रेट जो मैंने आपको बताया वो एलिमिनेट आपने करने की कोशिश की या कर लिए। फिर संजीव जी ने आपको बताई बात नोक्लर की। नोक्लर है नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। आपके पास ऑलरेडी एक एसए 250 है which deals with the non-compliances of laws and regulations. The only difference is SA 250 deals primarily with the financial laws and regulations, provident fund, ESI, bonus. वो इनके साथ डील करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी चीज है जिससे कि आपके ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर असर आ रहा है तो आप उसको देख लें, और अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई नॉन कंप्लायंस हुई है और उससे आपका ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्टॉर्ट हो रहा, तो आप उसको मेन रिपोर्ट में क्वालिफाई करेंगे। इसमें छोटी और बड़ी कंपनी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आप छोटी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो भी, बड़ी का कर रहे हैं तो भी। आप किसी ऐसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं जिसके 20 एम्प्लॉइज हैं, 20 से ऊपर एम्प्लॉइज, और उस पर पीएफ लगना चाहिए, पीएफ लगाया नहीं। ये तो हम सब जानते हैं क्या हो रहा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं है, पीएफ में रजिस्ट्रेशन नहीं तो कम से कम 24% कॉस्ट अपनी बचा रहा, वो 20 से 24% की कॉस्ट बच रही है उसकी। सपोज कीजिए 1 करोड़ की सैलरी हो और 1 करोड़ की सैलरी उसकी सब चार्जेबल है टू पीएफ एंड डीएसआई, तो कितनी सेविंग हुई उसकी? 24 लाख की। तो प्रॉफिट वो दिखाता 15 लाख का, तो ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या? नहीं। तो वो SA 250 is very clear. Qualify your report in those circumstances. कर रहा हूं क्या? सबसे बड़ी बात यह कि कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा हूं, करना है। नोक्लर उससे 4 कदम आगे है, और नोक्लर अगर आएगा, ये न्यू कोड ऑफ एथिक्स में एक चीज जो सबसे बढ़िया हुई, उन्होंने अगर मेंबर इन प्रैक्टिस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया तो जो मेंबर इन सर्विस है उनको भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया, क्योंकि उन्होंने एक चीज रिकॉग्नाइज की है कि भाई मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देता कौन है? The people who are members in service. भैया अगर डीएफ मुझे दे रहा है तो डीएफ की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जीएम फाइनेंस मुझे स्टेटमेंट दे रहा है तो उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। Why should he not be held liable? नोक्लर के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपको ये लगता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, अगर आपको ये लगता है कि जो बेसिक लॉज हैं उसी की फ्लाउटिंग हो रही है, रेरा की फ्लाउटिंग हो रही है, आप रियल एस्टेट कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और रेरा ये कहता है कि अगर आपने किसी से जो पैसा आता है, कस्टमर से भी जो पैसा आता है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो आपने एक एस्क्रो अकाउंट में डालना है, उसका पर्टिकुलर परसेंटेज। अगर वो उसमें नहीं डल रहा है तो आपको कंसर्न अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना। रिपोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो कहता है अगर सपोज कीजिए आपने अप्रूव तो करवाया 40,000 स्क्वायर फीट एरिया और आपने बना दिया 60,000 स्क्वायर फीट और बेच दिया 60,000 स्क्वायर फीट, तो आप रिपोर्ट इट टू दी अथॉरिटीज कंसर्न। कर पाएंगे क्या? सवाल तो यही है, कर पाएंगे क्या? इसीलिए इंस्टीट्यूट ने अभी पोस्टपोन किया ये प्रोविजन। करना तो पड़ेगा, ये आपको बता सकता हूँ।
सूनर और लेटर करना पड़ेगा, छूटेगा नहीं है। ये ड्यूटी ऑडिटर पे आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या, मैं आपको एक इंस्टेंस दे रहा हूं। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, उसकी फीस है 1 करोड़ रुपया, आपके पास कागज है, 5 कागज है उसके अंदर पूरे, 6ठा कागज नहीं है, आपको क्लियर लग रहा है कि चेक दे के कैश लिया, तो यहां तक की रिपोर्टिंग मांग रहा आपसे, यहां तक की रिपोर्टिंग मांग रहा। और वो ये कहता है कि अगर ऐसे केसेस हैं नॉक्युलर के, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस के, तो पहली बात तो ये कि मैनेजमेंट को जाके कहो कि इसको ठीक करो, और अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं करती तो रिजाइन करो, और रिजाइन करने के साथ साथ उन अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो जिन अथॉरिटीज की ये विसात में आता है। इससे ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती, ये तो मैं बता सकता हूं। और नए कोड ऑफ कंडक्ट में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने वाली है। अभी उन्होंने सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की बात की है, परंतु अल्टीमेटली कहीं ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि हम ये अगर सोचेंगे पीएसयू का तो कोई भी ऑडिट आएगा तो आपका पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अब पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी डिफाइन कैसे होगी, टर्नओवर के बेस पे होगी, कैसे करेंगे वो देखेंगे बाद में, लेट्स सी दैट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज लाइफ इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट so far as the audit profession is concerned. Let's be very very clear so far as this particular part is concerned. मेरा अपना मानना यह है कि ऑडिटर के लिए चाहे वो छोटा है या बड़ा है, लाइफ इतनी आसान नहीं है। एक उन्होंने प्रोविजन और दिया, वो मेरे ख्याल संजीव जी ने डिस्कस कर लिया है आपके साथ, कि भाई अगर आपकी फीस, ग्रॉस फीस आपकी किसी क्लाइंट से, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में 15% से ऊपर है, तो आप, और 2 साल लगातार रहती है, तो आपको क्लाइंट को जाके बताना कि जी मैं आप पे निर्भर हूं, आत्मनिर्भर नहीं हूं। तो मैंने पूछा इंस्टीट्यूट वालों से, ईएसबी वालों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, अगर मैं उसको जाके कहूंगा मैं आप पे निर्भर हूं, तो वो मेरे को और डराएगा, धमकाएगा, या मेरे से प्यार करेगा? डराएगा, धमकाएगा मुझे। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो ये कह दो कि रिजाइन कर दो 3रे साल में, अगर 3रे साल तक भी यही पोजीशन रहती। उससे ये मत बोलो कि मुझे उसे जाके बताना, मैं उससे जाके क्यों बताऊं? पहली बात तो ये कि शायद ये 15% बढ़ के 30% हो जाएगा, और शायद ये हो जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में 5 लाख तक की जो रिसीट है, इट विल नॉट बी कवर्ड बाय दैट। और मैंने ये सजेस्ट किया कि आप ये कर दीजिए कि ये जो पहले इन्होंने ये कहा हुआ कि भाई 3 लाख तक की रिसीट, और अब कहा था 5 लाख की जिनकी रिसीट है उस पर ये लागू नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको 15 लाख 20 लाख तक की रिसीट जिसकी है उस पर लागू मत करिए किसी को। मेरा अपना मानना ये 15-20 लाख तक की रिसीट वाले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा अपना मानना वैसे कुछ और था। मैंने कहा था कि आप ये कह दीजिए पहले 5 साल ऑफ प्रैक्टिस, पहले 7 साल ऑफ प्रैक्टिस, 10 साल ऑफ प्रैक्टिस, ये लागू नहीं होगा किसी मेंबर पे, क्योंकि ये पीरियड ही डिफिकल्ट होता है जब मैं शायद किसी एक ही क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होता हूँ। तो उनमें कह दीजिए कि लागू नहीं होगा। 5 साल बाद, 7 साल बाद, जो भी आप साल लेना चाहें वो साल ले लीजिए, और उसको कहिए कि उसके बाद आप पे ये लागू हो जाएगा। लाइक इंस्टीट्यूट इज वर्किंग ऑन दिस, इस पे कुछ ना कुछ आएगा जरूर। ये 15% नहीं रहेगा, ये मैं पक्की बात मेरी है। That's what I think in my own wisdom basically. I think I will like to finish off here, except for saying further जितने भी हैं, जितने भी मेरे एसेट हैं, वो स्मॉलर एंटिटीज पे उतने ही लग रहे हैं जितने बिगर एंटिटीज पे लग रहे हैं। ये मैं बता के जाना चाहता हूँ आपसे। प्लानिंग का है भाई, स्मॉल एंटिटी तो उसकी स्मॉल तरीके से प्लानिंग कर लीजिए। ऑडिट प्रोग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना, स्मॉल वाले में भी ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बिगर वाले में भी बनाना पड़ेगा। अब मैं कहूँ मैं 300 में प्लानिंग ही नहीं करूंगा उसकी, मैं ये कहूँ मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करूंगा किसी भी सूरत में, तो फिर काम कैसे बनेगा? मैं ये कहूँ जो ऑडिट एविडेंस का एसेट 200 है मैं उसका कंप्लाई नहीं करूंगा,
मैं एविडेंस ही नहीं रखूंगा ऑडिट का कि मैंने कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ किए, ये नहीं हो। आई डोंट थिंक यू कैन डू दैट। ऑडिट एविडेंस तो गैदर करना ही पड़ेगा। अगर मैंने एडवर्स ओपिनियन दिया तो भी, एम्फेसिस मैटर दिया तो भी, की ऑडिट मैटर दिया तो भी, क्लीन रिपोर्ट दी तो भी, कि मैं सेटिस्फाइड कैसे हुआ किन्हीं बातों से। अगर एक्चुअल वैल्यूएशन है, मैंने उसको टेस्ट कर लिया या नहीं किया कि ये ठीक है, उसके assumptions ठीक किए, चेक किए या नहीं किए। ऑडिट एविडेंस तो मुझे लेना ही पड़ेगा हर सूरत में। 230 में मुझे उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी ही पड़ेगी। आई हैव एब्सोल्युटली नो चॉइस। वो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सेप्टेंस लेटर, एंगेजमेंट लेटर एंड द अदर पार्ट देयर ऑफ, आई विल हैव टू लुक एट इट। मैंने उसके अकाउंटिंग एस्टिमेट चेक किया, उसके रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर चेक किए या नहीं किए, गोइंग कंसर्न SA 570 में टेस्ट किया या नहीं किया। ये सब चीजों की आपको एविडेंस अपने पास रखनी पड़ेगी। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। क्लाइंट छोटा होगा तो छोटा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा। हाँ, सवाल इतना ही है कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो मेरा ख्याल अभी चल रही है बातचीत उसके ऊपर, अभी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्वेश्चनर भी सर्कुलेट किया इंस्टीट्यूट ने, कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो है वो वाकई में सारी कंप्लायंस होनी चाहिए या पार्शियल कंप्लायंस होनी चाहिए। देखिए, मेजरमेंट रिकॉग्निशन से कोई रिलीफ मिले मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला। डिस्क्लोजर क्या रिलीफ मिल जाएगा? डिस्क्लोजर्स उतने नहीं करने पड़ेंगे MSMEs बेसिकली। दैट आई एम क्वाइट क्लियर अबाउट। थैंक यू वेरी मच। मैं कोड ऑफ एथिक्स अभी मैंने शायद 50% ही कवर किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई डोंट हैव द टाइम राइट नाउ, क्योंकि मेरे आई हैव सम अदर एंगेजमेंट्स आल्सो। 4 से 6 का टाइम था, 6 बज गए हैं, और संजीव जी ने के साथ भी मैं कुछ गुफ्तगू साथ साथ करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर इस तरह लग रहा है कि भाई रुक क्यों गए तुसी, मतलब 1-2 घंटे और सुन लीजिए तो थोड़ा अच्छा फायदा हो जाएगा। अच्छा फायदा होगा यार। रियली दूसरी लाइन के लिए सोचना शुरू कर दें कि अब क्या करें। सर लोगा दे ऑडिट क्लाइंट बंदे ने साढ़े काट रहे हैं। I can tell you Nitika one thing, I am generally blamed for it कि मैं डराता हूँ। मेरा हमेशा बड़ा क्लियर है, मेरा अपना कहना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मेरे क्वच है, मेरा मास्क है। आज कोरोना में मास्क लगा के घूम रहे हो ना, राइट, फेस कितना भी भेड़ा लग रहा हो, कितना भी गंदा लग रहा हो फेस, दूसरा पहचान भी नहीं पाता कि कौन आया, फिर भी लगा के घूमते। क्यों लगा के घूम रहे? प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, अगर मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को उससे, तो मुझे अपने कैरियर को तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, टाइम एंड अगेन आई रिक्वेस्ट टू द मेंबर्स वन थिंग, आई थिंक अबाउट एवरीबॉडी ऑन द अर्थ एक्सेप्ट माई सेल्फ। कभी अपने बारे में भी सोचना शुरू करो ना, सिर्फ क्लाइंट के बारे में ही सोचते रहेंगे कि क्लाइंट को क्या होगा, अरे मुझे क्या होगा ये तो सोच लो। मैं रहूंगा तो पता लगेगा ना क्लाइंट को क्या हुआ, अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या पता क्लाइंट है या नहीं है। देयर वाज ए पीरियड जो यहाँ पे चलता था, वो चलता वाला रहा नहीं। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। जितनी कंप्लेंट्स हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की और CBI की आ रही हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू द एक्सटेंट ऑफ दैट। I think there was some question coming from Hyderabad. Some gentleman. Yes. Yeah, please. Sir, can I ask you one question? Yeah. सर, एक फीस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। सपोज एक ऑडिटर की टोटल फीस 14 लाख है और उसमें से 1.75 स्टार्ट ऑडिट की है, 1.5 लाख आपकी टैक्स ऑडिट की है, GST फाइलिंग की फीस 3 लाख और रिमेनिंग आपके कंपनीज मैटर और 4 लाख रुपए आपकी अदर फीस है जो कि अदर मैटर्स के जैसे RBI वगैरह। नहीं हो सकती नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड की 4 लाख अदर मैटर्स की नहीं हो सकती। आप GST ऑडिट फी में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अब जैसे अगर किसी का RBI का कंप्लायंस करवाया तो उसके लिए अगर अदर मैटर्स में ले लिया, नहीं हो सकता। देखिए, मैं उतना बता सकता हूँ जितना मुझे आता है, उससे ज्यादा पूछना हो तो संजीव जी को बुलाइएगा दोबारा। सर तुसी बॉस हो सर। Sir, if my wife is professional and she is also rendering up for professional services to the audit client, then it's fine.
Right. वो करते रहे, वो अलग है। पर हाँ एक जी। बात ध्यान रखिएगा, जी। रिलेटेड पार्टी इन द बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, हम्म। वो थोड़ा सा ध्यान, वही इंडिपेंडेंस आपकी रहेगी नहीं ना। Sir, legal services. She हाउ is डू यू doing legal मिटिगेट दैट? services. Sir, she is legal. She is a lawyer. देखो लीगल, मैं फिर वही कह रहा हूँ, हम्म। नफरा ने बीएसआर को जहाँ उधेड़ा है वो लीगल नहीं है, उन्होंने एथिकल पे उधेड़ा पूरे का पूरा। Right. So, if my wife is a lawyer, she cannot render a professional services to the same. सर अगर उनके कोर्ट केसेस हैं तो करें, but then you make a disclosure somewhere before the audit committee, etc. No, it is not. They are not the court cases. They are, the other tax laws. अदर टैक्स लॉज आप ही उनकी ऑडिट कर रहे हैं, वो उनकी टैक्स लॉज कर रही हैं, तो फिर तो कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं होगा ही बॉस, ये बता दिया आपको। Okay. क्योंकि तो वो फिर आपकी गलती नहीं बताएंगे, आप उनकी गलती नहीं बताओगे, ये तो पक्की बात है। और आपने कहीं उनकी गलती बता दी तो शाम को क्या होगा ये किसी को पता नहीं। फिर इसका मतलब ऑडिट करना नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है। ऑडिट इज बिकमिंग डेंजरस, बट इट्स अ वेरी रियली अ वेरी नाइस सेशन। हैदराबाद वालों के हाँ जी, इनको हमने डाल दिया ऑन पैनल, ही कैन आस्क। हाँ प्लीज। हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी। हेलो Sir, you are audible. You please ask your question. हेलो हेलो हेलो। Yes, please ask. I am Kabra from Hyderabad. Hello. You are a member of Hyderabad, I know that, but please go ahead with your question. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इथिक्स के बारे में बताया, काफी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। मेरा एक हटकर एक क्वेश्चन है, जैसा भी ऑनलाइन ऑडिट करते हैं हम लोग, ऑनलाइन में क्या क्या रिकॉर्ड रखना चाहिए ऑडिट के लिए? पूरा ऑनलाइन पर ही क्वेश्चन आंसर होता है, रिकॉर्ड कुछ रहता नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, खाली बैलेंस शीट बन के आती है, प्रोग्राम तो हम बनाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिकॉर्ड रखना चाहिए एज ऑडिट नोट सर? ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं होती है? डॉक्यूमेंटेशन जैसा ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, वर्किंग सब, वर्किंग कुछ नहीं होती है, पूरा चेकिंग नहीं होता है 100%। नहीं वो ठीक है, 100% चेकिंग तो आपका वैसे भी नहीं होता। जी जी, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रखना चाहिए सर? प्लीज गाइड कीजिए सर, प्लीज गाइड कीजिए सर, डॉक्यूमेंटेशन क्या रखना चाहिए? देखिए डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन में जो भी कागज आप उनसे ले रहे हैं, ऑनलाइन भी तो डॉक्यूमेंटेशन तो आप उनसे लेंगे ना। यू विल टेक ऑनलाइन भाई, यू अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे तो ऑनलाइन ले लेंगे, पर वो कंफर्मेशन तो आपके रिकॉर्ड में आएगी ना। आप कोई भी बैंक कंफर्मेशन लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, पर आपके रिकॉर्ड में तो आएगा। हाँ, तो बैंक का मिल जाएगा, मैं पार्टी के कंफर्मेशन नहीं मिलेंगे, ऑडिट नोट्स भी कुछ नहीं मिलेंगे, ऑडिट नोट्स भी, क्योंकि वो पूरा रेक्टिफाई कर दिया उन लोगों ने। Then consider it as a limitation scope limitation and qualify the report. See, if the party says कि ये भी नहीं दूंगी तो फिर ऑडिट किस चीज का? वही इसलिए क्वालिफाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके नितिका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मनीष सर आज ऐसे लग रहा है कि मन नहीं भरा, एक सेशन और फिर किसी दिन से। पर मैं मुनीष जी को सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि अगर अब सेमिनार करना होगा अगले 2 महीने 2.5 महीने, तो शाम को 5 से 7। उसका कारण है कि आई एम गोइंग टू कनाडा, और जिस वक्त यहाँ पे 5 बजेंगे वहां सुबह के 7:30 बजे होंगे, तो सुबह 7:30 बजे करेंगे, क्योंकि 14.5 घंटे का फर्क है, शाम वाला तो हो ही नहीं सकता। वहां की शाम जब होगी तो आपकी सुबह भी नहीं होगी, वो नहीं हो सकता। सिर्फ शाम को यहाँ पे जब 5 से 7 होगा तो वो प्रोग्राम हो सकते हैं, तो कभी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर ऑल थ्रू दिस ये ऑनलाइन ही चलना सब काम। बिल्कुल सर। Your daughter lives in Canada, right? I am going to Canada on 30th. Your daughter lives there. Your daughter lives there. My daughter lives there. Yeah. Good. बेटी है, सबको बहुत प्यारी होती है। One in Dubai and one in Canada. Great. नहीं